ایک ناگوار سی بو بیڈروم میں داخل ہوتے ہی اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی اور اس کے قدم وہیں دہلیز پر ہی ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے دم گھٹ رہا ہو۔ اگر وہ 5 منٹ اور وہیں کھڑی رہتی تو یقیناً چکرا کر گر جاتی، اسی لیے وہ یکدم پلٹی اور دروازہ کھول کر باہر جانے کو لپکی تھی۔ رکو! افغان افروز کی بھاری، گمبھیر اور بوجھل آواز اس کے قدموں کی زنجیر بن گئی تھی۔ وہ اس کی آواز پر دروازے میں کسی بت کی مانند کھڑی رہ گئی۔ پر اس کا دایاں ہاتھ دروازے کے ہینڈل پہ مضبوطی سے جما ہوا تھا، جیسے اسے چھوڑ کر واپس پلٹنے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ ادھر آؤ! اس نے سر کے اشارے سے اسے قریب آنے کو کہا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی آگے یا پیچھے نہ ہلی۔ میں کہہ رہا ہوں ادھر آؤ میرے پاس، وہ غصے سے دانت پیس کر بولا تھا، لیکن وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اس نے یکدم شیر کی طرح دھڑتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا شیشے کا گلاس زور سے دروازے کی سمت دے مارا تھا۔ وہ یکدم ایک سائڈ پر ہوئی تھی اور گلاس دروازے سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ گلاس میں موجود مشروب کے چھینٹے اس کے پیروں پہ اور کپڑے پر گرے تھے اور وہ بدک کر دور ہٹ گئی۔ دروازہ بند کر کے ادھر آؤ میرے سامنے، اس نے پھر سے آرڈر دیا۔ اب کی بار وہ اس کے خطرناک تیوروں سے کافی اچھی طرح باخبر ہو چکی تھی۔ جب وہ دروازہ لاک کر کے اپنی سادہ اور نفیس چپل سے نیچے چھوٹے چھوٹے کانچ خزاں رسید پتوں کی طرح رونتی ہوئی اس کے سامنے دفعہ 302 کے مجرم کی طرح آن کھڑی ہوئی، اسے پتا تھا کہ اب اس کی رہائی ناممکن ہو چکی ہے۔ واپس کیوں بھاگ رہی تھی؟ اس نے اسے سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، لیکن جواب ندارد۔ گونگی اور بہری کیوں ہو گئی ہو؟ اسے ایک بار پھر تاؤ آیا تو زور سے اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکے سے کھینچی اور وہ سلونے پتھر کی مورتی اس کے اوپر ہی آن گری۔ گرتے ہی اس کے حس و حرکت بیدار ہو گئی۔ اس نے بھکلا کر پیچھے ہٹنا چاہا تھا، لیکن اس کی کمر جکڑی جا چکی تھی۔ اس نے اس کا حصار توڑ کر نکلنا چاہا، لیکن یہ بھول گئی کہ گرفت افغان افروز جیسے طاقتور مرد کی ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا ہر روز تاوان بھرو گی تم، اور ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، تم ابھی سے بھاگنے لگی ہو؟ ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، کیسے گزرے گی یہ زندگی؟ وہ اس کا دوپٹہ اس کے گلے سے نکال کر دور پھینک چکا تھا اور وہ اس کی بات اور اس کے انداز پر ببر گئی تھی۔ میں ہر تاوان بھرنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ آپ ہوش و حواس میں ہوں۔ میرے کسی ناگردہ گناہ کی سزا دینی ہے تو مجھ سے نظریں ملا کر سزا دیں، آنکھوں پر نشے کی پٹی چڑھا کر نہیں۔ وہ بھی جواباً اسی کے لب و لہجے میں بولی تھی، جس پہ افغان افروز کا ہاتھ اٹھا اور 5 انگلیاں اس کے رخسار پر ثبت ہو گئیں۔ اور میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ کبھی بیویوں والے زم میں آ کر مجھ سے بات مت کرنا، بات کرنی ہے تو اپنی اوقات میں رہ کر بات کرنا، ورنہ سارے زم توڑ کر رکھ دوں گا۔ اس نے غورا کر اسے یاد دلایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ رونا مت، نفرت ہے مجھے آنسو سے، ہر بات پہ پابندی تھی۔ وہ گھٹ گھٹ کے رونا چاہتی، پھر بھی رو نہیں سکتی تھی۔ جاؤ اپنا حلیہ درست کر کے آؤ، اس نے سختی سے کہتے ہوئے ایک دم اسے بازو کے تنگ گھیرے سے آزاد کر دیا اور وہ تیزی سے اس کے سینے سے الگ ہوئی تھی، جیسے کسی ادویہ اور ناقابل برداشت اسیری سے رہائی ملی ہو۔ میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ۔ جانے سے پہلے ہی جلدی آنے کی تاکید کی جا رہی تھی۔ وہ دوپٹہ اٹھا کر تیزی سے باتھ روم میں بھاگی۔ باتھ روم میں گھستے ہی اس کے سینے میں دبی سسکیوں اور آنکھوں کے کنارے پر ٹھہرے اشکوں کو راستہ مل گیا تھا۔ وہ دوار گیر آئینے کے سامنے کھڑی واش بیسن پر دونوں ہاتھ جما کر جھکی ہوئی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ افغان افروز نہ جانے کس جنم کا بدلہ لے رہا تھا اس سے۔ وہ بے بسی سے جتنا سوچتی اتنا ہی رونا آتا۔ آخر وہ جاتی تو کہاں جاتی، کرتی تو کیا کرتی؟ ان دونوں نے ایک دوسرے کو جو سمجھا تھا وہ غلط تھا۔ فجر کی پہلی اذان پر ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے ذرا سی کروٹ بدل کر گردن موڑ کر بیڈ کے بائیں طرف دیکھا۔ وہ تکیے پر سر رکھے اوندا لیٹا بے حد گہری اور بے سود سو رہا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر ایک بے خبری اور اطمینان کا علم تھا۔ جس روز اسے چوٹ لگتی تھی، اس روز وہ پہروں تڑپتا تھا اور پیروں سلگتا تھا۔ رات آنکھوں میں کٹتی تھی اور آنکھیں عذاب میں کٹتی تھیں، اور یہی عذاب معدہ کو اپنی ذات پر جھیلنا پڑتا تھا، اپنی روح کو چلنا پڑتی تھی، اپنی نسوانی انا کو مجروح کرنا پڑتا تھا، تب جا کر وہ پرسکون ہو کر سکون کی نیند سوتا تھا۔ کل رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اسے اپنی وحشت کا نشانہ بنا کر سکون سے سو رہا تھا، اور وہ پھر بھی صبر کیے اپنی قسمت پہ شاکر تھی۔ نماز پڑھنے کے لیے اپنے بال سمیٹتی ہوئی اٹھی تو نہ جانے کیوں اپنے اوپر سے کمبل ہٹاتے ہوئے اس کی نظر افغان فیروز پر ٹھہر سی گئی۔ کتنا خوبصورت تھا وہ، مردانہ وجاہتوں سے مالا مال۔
جمال، شاندار شخصیت کا مالک، ایک مکمل مرد۔ لیکن اس مکمل مرد کی ذات ادھوری تھی، ہر بات ادھوری تھی، اس کی ہر رات ادھوری تھی، اور یہی ادھوراپن اس کا ایک زخم، ایک ناسور بن گیا تھا، جس کی تکلیف افغان افروز کو کم اور مائدہ کو زیادہ ہوتی تھی۔ بالکل ایسے جیسے اس وقت ہو رہی تھی، اور اسی تکلیف کے احساس سے وہ اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ جب افغان افروز نے کروٹ بدلی اور اس کا ہاتھ مائدہ کی گود میں آ پڑا تھا، وہ یکدم گھبرا گئی تھی، کیونکہ افغان افروز کا اس وقت نیند سے بیدار ہونا بھی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس کے بیدار ہونے سے یقیناً مائدہ کی نماز قضا ہو جاتی، جو اسے کسی بھی طور منظور نہیں تھا، اسی لیے وہ اس کے کروٹ بدلنے پر دم ساتھ گئی۔ پھر اس کی گہری نیند کا اطمینان کر لینے کے بعد احتیاط سے اس کے ہاتھ اپنی گود سے ہٹایا اور خود آہستگی سے بیڈ سے اتر گئی۔ وہ دوبارہ اس پر کمبل ڈال کر خود باتھ روم میں چلی آئی، 15 منٹ بعد نکلی اور نماز پڑھنے کے لیے باہر چلی گئی۔ بیڈ روم میں پھیلی ناگوار بو اور لوازمات کی وجہ سے اس کا بیڈ روم میں نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہا تھا، اس لیے جائے نماز اٹھا کر نیچے آ گئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں جائے نماز بچھا کر نماز ادا کی، تسبیح پڑھی اور دعا مانگنے کے بعد دادی بی کے کمرے کا رخ کیا۔ السلام علیکم دادی بی، صبح بخیر۔ اس نے اندر آتے ہی انہیں سلام کیا۔ وہ بھی جاگ رہی تھی اور اسی کے انتظار میں تھی کہ کب وہ آئے اور انہیں وضو کروائے، کیونکہ وہ خود سے نہ تو اٹھ سکتی تھی اور نہ ہی چل پھر سکتی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دعا دی تھی۔ آمین۔ وہ ان کی دعا سمیٹتی ہوئی جھکی اور انہیں سہارا دے کر ویل چیئر پر بٹھانے لگی۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی، ورنہ تمہارے آنے سے پہلے اکثر فجر کی نماز قضا ہو جاتی تھی۔ وہ ان کی ویل چیئر دھکیلتی ہوئی باتھ روم کی سمت لے جا رہی تھی جب دادی بی نے اس کی خدمت گزاری پر تعریف کی تھی، بلکہ احسان مانا تھا اس کا۔ چلیں شکر ہے میرے آنے کا کوئی تو فائدہ ہوا، میرے آنے سے یہ نیک کام ہوا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے بھلا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ انشاءاللہ اللہ تمہیں اجر دے گا۔ دادی بھی اس وقت اسے دعائیں ہی دیتی رہتی تھی، اور وہ ان کی اتنی محبت، اپنائیت اور اتنے خلوص پر ہمیشہ چپ ہو کے رہ جاتی تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی، لیکن پھر بھی اس قابل بنا دی گئی تھی۔ پتر افغان رات کو کب آیا تھا؟ دادی بی نے پوچھا۔ جلدی آ گئے تھے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ تو پھر مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ انہیں اشمبا ہوا، حواسوں میں نہیں تھے۔ وہ مختصر سا کہہ کر رخ موڑ گئی تھی، اور دادی بھی اس کے جواب کا مفہوم جان گئیں۔ پھر جب تک انہوں نے نماز اور مائدہ نے سپارہ پڑھا تھا، ان کے درمیان خاموشی ہی چھائی رہی، لیکن جیسے ہی وہ ان کی ویل چیئر دھکیلتی ہوئی باہر لان میں لے کر آئی، ان کی زبان پہ رکے الفاظ بھی باہر نکلنے لگے تھے۔ اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ پہلا تشویش بھرا سوال آیا تھا۔ کہہ بھی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے سر جھٹکا۔ فرق پڑتا ہے بیٹا، تم اس کی بیوی ہو، اسے تمہارا خیال کرنا چاہیے۔ دادی بی کو مائدہ اور افغان افروز کی طرف سے پریشانی ہو رہی تھی۔ خیال تو وہ تب کریں گے جب وہ ہوش میں ہوں گے، اور جب وہ ہوش میں ہوتے ہیں تب وہ گھر پہ نہیں ہوتے۔ وہ ذرا سی تلخی سے بولی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ شادی کے بعد بدل جائے گا وہ، لیکن دادی بھی اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے چپ ہو گئی۔ یہ شادی میری اور آپ کی مرضی سے ہوئی ہے، اگر ان کی مرضی سے ہوتی تو شاید وہ بدل ہی جاتے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس لیے دادی بھی جواباً کچھ نہ کہہ سکی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ اس نے ڈرنک کیوں کی؟ کافی دیر بعد انہوں نے دوبارہ سوال کیا۔ وجہ معلوم ہو تو پوچھنے کا فائدہ؟ اس نے استہزائیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن مائدہ، میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں کہ اسے اس کے حال پہ مت چھوڑو، انٹرفیئر کرو اس کی ذات میں، حق جتاؤ، بیویوں والے انداز اپناؤ، اسے بتاؤ کہ تم اس کی ہو اور وہ تمہارا ہے۔ دادی بھی اسے سمجھا رہی تھی۔ میرے بتانے سے میں اور ان کی اور وہ میرے نہیں ہو جائیں گے۔ حقیقت کیا ہے یہ آپ بھی جانتی ہیں، مائدہ نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ان کی ڈھلکی ہوئی گرم چادر اٹھا کر ان کے گرد پھیلا دی۔ لیکن بیٹا یہ زندگی ہے، جیسے یہ گزارنا چاہتا ہے ویسے زندگی نہیں گزرتی، وہ تو پاگل۔ پلیز دادی بھی، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں، جب تک آپ یہ اخبار پڑھیں۔ مائدہ نے ان کی بات کاٹتے ہوئے ان کی طرف اخبار بڑھا دیا۔ سورج کی کرنیں سنہرا سنگھار کیے دھوپ کے گھنگروں باندھے ہر صحن پر آنگن میں دن بھر رقص کرنے کے لیے اتر چکی تھی، اور سرد موسم میں ان کے اس رقص سے جو لوگ مسرور ہو رہے تھے ان میں دادی بھی شامل تھی۔ داخلی دروازے کے سامنے وہ ویل چیئر پہ بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی جب مائدہ ان کے لیے چائے بنا کر لائی۔ تھینک یو بیٹا، انہوں نے نرمی سے کہتے ہوئے کپ اس کے ہاتھ سے تھام لیا تھا۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں دادی بھی، یہ تو میرا فرض بنتا ہے، اس میں تھینکس کی کیا ضرورت ہے، بلکہ مجھے تو آپ کا کام کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر خود بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ نہیں بیٹا، آج کل کوئی بھی اپنا فرض اور اپنا حق نہ مانتا، بڑی جلدی آنکھیں پھیر لیتے ہیں سب۔ ایسے حالات میں اگر کوئی پھر بھی اپنا فرض پورا کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ بھی جواباً سنجیدگی سے بولی۔ مائدہ کچن میں آ گئی، اسے افغان کے لیے ناشتہ تیار کرنا تھا۔ دادی بی کے اور افغان افروز کے کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی تھی، عیشا سے دوسرے کام کرواتی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی، وہ ابھی تک نیچے نہیں آیا تھا، اس لیے مائدہ کو خود ہی اوپر آنا پڑا۔
वो दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ बता रही थी कि वो शावर ले रहा है। वो खामोशी से आगे बढ़ के कंबल तह करके रखने लगी। बेड पर झुकी वो बेडशीट की शिकनें दूर कर रही थी जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और वो तौलिए से बाल रगड़ता हुआ बाहर आया। गुड मॉर्निंग। वो मायदा की मौजूदगी से बेखबर ड्रेसिंग टेबल की सिमत पड़ रहा था। इसकी आवाज़ पर चौंक कर पलटा था। वो प्याजी रंग के जारजट की नफीस सी कढ़ाई वाले सलवार सूट में मलबूस निखरी सुथरी सी खड़ी हाथों में पकड़ा कुशन बेड पर रख के 2 तकियों के दरमियान रख रही थी। इसके चेहरे पे रात के किस्से का शाइबा तक नहीं था। इसका चेहरा बेतासुर और अंदाज बेनियाज सा लग रहा था। अफगन अफरोज की नज़रें इस पर ठहर गईं। नम आलूद बालों से इसकी पूरी कमर ढकी हुई थी। इसके बाल बेहद घने और स्याह थे। अब कैसी तबीयत है आपकी? वो गिलास और खाली मशरूब की बोतलें ट्रे में रखते हुए बोली तो अफगन अफरोज चौंक गया। क्या हुआ है मेरी तबीयत को? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो बेसाख्ता हैरानी से बोला। अभी ठीक है ना? रात को ठीक नहीं थे। रात को तो आपकी सेहत खासी ख़राब थी। रात को वो इसकी बात का मतलब समझ के लब भीज गया। जी रात की ही बात कर रही हूँ, वो ज़ोर देकर बोली। तुम कहना क्या चाहती हो? वो इसके सामने आ खड़ा हुआ। जो आप समझ नहीं पा रहे। वो इस्तहज़ाइया हंसी। गुस्से में आकर अफगन अफरोज़ ने इसका बाजू दबोच लिया। मैं क्या समझता हूँ और क्या नहीं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। समझी तुम? इसने मायदा के बाजू को झंझोड़ा। क्यों मतलब नहीं होना चाहिए? मैं आपकी बीवी हूँ, मुलाज़मा नहीं। मैं बीवी को मुलाज़मा से ज़्यादा का दर्जा नहीं देता। वो हकारत से बोला था। तो फिर शादी क्यों की थी? मायदा जानती भी थी फिर भी सवाल कर बैठी। क्योंकि एक मुलाज़मा की ज़रूरत थी मुझे। मेरे घर को मेरी दादी भी को इसलिए करनी पड़ी। ये ज़रूरी थी। ज़रूरतें तो कोई और मुलाज़मा भी पूरी कर सकती थी। हाँ कर सकती थी, लेकिन सिर्फ़ घर की ज़रूरतें। मेरी ज़रूरतें वही मुलाज़मा पूरी कर सकती थी जिसके साथ बीवी का दुमछल्ला होता। ये काम तो ईशा भी कर सकती थी। इसे भी आप बीवी का दुमछल्ला पहना सकते थे। नहीं, इसे नहीं पहना सकता था क्योंकि वो एक सादा सी नींद की दीवानी और अपनी ज़ात में मस्त रहने वाली लड़की है। तुम्हारी तरह इसने कभी अफ़ग़ान अफ़रोज़ पर और इसके घर पर बुरी नज़र नहीं डाली, कभी हसरत से नहीं देखा। मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने काम से काम रखती है, बदनीयती नहीं दिखाती। अफ़ग़ान अफ़रोज़ ने इसकी ज़ात के परखचे उड़ा दिए थे। माहिदा के चेहरे की रंगत मुतग़य्यर हो गई। इसने पल भर में इसका सारा ज़म, सारा करूर तोड़ के रख दिया था। वो जवाबन कुछ कहने के काबिल नहीं रही। तुम क्या समझती हो कि मैं अनजान हूँ? क्या मैं नहीं जानता कि तुमने मुझसे शादी क्यों की? इसने मायदा की तहैयर से फैली हुई आंखों में झांकते हुए तंज़िया अंदाज में पूछा था। आप वाकई नहीं जानते कि मैंने आपसे शादी क्यों की है? अगर आप ये समझते हैं कि मुझे दौलत की हवस थी और आप ये सब और मैं ये सब आशाइशात पाना चाहती थी तो यही सही। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आपका नाम मिल गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। मायदा आहिस्ते से कहती हुई रुख मोड़ गई। मबादा वो इसकी आंखों में आंसू ना देख ले तो फिर झगड़ा किस बात का है? तुम जो चाहती थी वो मिल गया, वो काफ़ी है। तो फिर खुश रहो। मेरे मामलात में इंटरफेयर क्यों करती हो? मैंने आपके मामलात में इंटरफेयर नहीं किया, सिर्फ आपकी तबीयत पूछी है। मायदा का लहजा भीग रहा था। मत पूछो मेरी तबीयत, मुझसे कुछ भी मत पूछो क्योंकि मैं बताऊंगा ही नहीं। वो सख्ती से कह रहा था और मायदा लब भींच कर चुप हो गई थी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता दरवाजे पर दस्तक हुई थी। साहब जी, बड़ी बेगम साहिबा नीचे बुला रही हैं। वो नाश्ते पे आपका इंतज़ार कर रही हैं। दस्तक के बाद ईशा की आवाज़ सुनाई दी थी जिसे दादी बी ने पैगाम देकर भेजा था। मायदा आंखों के गोशे हाथ की पुश से रगड़ती हुई बाहर निकल गई थी और अफ़ग़ान अफ़रोज़ ने हाथ में पकड़ा हुआ तौलिया नफ़रत से बेड पर उछाल दिया और ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ा हुआ। ये औरतें। वो सुबह 9 बजे ऑफ़िस आया था और इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। वो अभी तक ऑफ़िस में ही था। इसे मुसलसल 9 घंटे हो चुके थे काम करते हुए। लंच भी नहीं किया था, सिर्फ चाय और सिगरेटों के से गुजारा होता रहा था। वो अभी भी न जाने और कितना मसरूफ़ रहता कि अचानक इसके एक दोस्त का फ़ोन आ गया। हेलो। इसने सिगरेट एशट्रे में मसलते हुए फ़ोन उठाया। हस्साम बात कर रहा हूँ। जानता हूँ, बोलो। इसने लैपटॉप की बोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए पूछा। तुम वलीमे के फंक्शन में नहीं आ रहे क्या? नहीं, इसने दो टोक लहजे में इनकार कर दिया। हाँ, मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी, बल्कि कई लोगों को तुमसे यही उम्मीद थी। हसाम ने तंज किया था। क्या मतलब है तुम्हारा? अफगन अफरोज की उंगलियां थम गईं। कल शादी के फंक्शन में तुम्हारी हालत बता रही थी कि तुम वलीमा अटेंड नहीं करोगे, इसलिए कह रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ था मेरी हालत को? ठीक ठाक ही तो थी, वो अनजान बनते हुए बोला। तुम जितने ठीक ठाक हो ये पूरा शहर जानता है। तुम्हारे चले जाने के बाद भी चमियाँ होती हैं, लेकिन तुम्हें कुछ खबर भी हो तब ना। तुम तो दीवाने हो गए और बस। शाम को कल रात से गुस्सा था, इसलिए इसकी क्लास ले रहा था। इसे अफगन अफरोज का यूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के फंक्शन से चले जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैं इस महफिल में नहीं बैठ सकता जहाँ वो भी मौजूद हो। मुझसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तुम्हें अगर मेरा इतना ही ख्याल था तो तुमने इसे इनवाइट क्यों किया?
था। अफगन को हसाम पर गुस्सा आया। यार हम दोनों तो शुरू से दोस्त हैं, लेकिन कुछ कारोबारी दोस्त अहबाब भी तो होते हैं ना, उन्हें भी तो इनवाइट करना था। और तुम जानते हो जमाल पीरज़ादा भी मेरे कारोबारी दोस्त अहबाब में शामिल होता है। मुझे ना चाहते हुए भी इसे इनविटेशन कार्ड भेजना पड़ा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसके साथ हसाम कहते कहते चुप हो गया था। तुम्हें पता नहीं था, लेकिन अंदाज़ा तो होना चाहिए था ना। अफगन अफरोज़ बमुश्किल अपना गुस्सा ज़ब्त कर रहा था। अंदाज़ा था, इसीलिए तो तुम्हें भाभी को साथ लाने के लिए कहा था। हसाम बेसाख्ता बोल गया और अफगन अफरोज़ इसकी बात पर ठिठक गया था। इसे क्यों साथ लेकर आता? अफगन अफरोज़ का लहजा और अंदाज़ तीखा था, ताकि दूसरों को भी पता चलता कि तुम शादी कर चुके हो और अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हो। तुम्हारे लिए किसी का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। हसाम की बात पे वो हैरान रह गया था। इसने कितनी गहरी और कितने काम की बात की थी, जो खुद इसकी अकल में आज तक नहीं आई थी। देखो अफ़ग़न सिर्फ जलना ही नहीं ना सीखो, जलाना भी सीखो। जलना फ़न नहीं होता, किसी को जलाना फ़न होता है और तुम्हें ये फ़न नहीं आता। कभी आज़मा कर देखो, बड़ा लुत्फ़ पाओगे। तुम्हारे सीने में जलती आग पे फुहार बरसेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना। अपनी लाइफ़ को ऐसा बनाओ कि देखने वाले रश करें और हाथ से निकले वक्त पे पछताएं। पछतावा अपना मुकद्दर बनाने से बेहतर है कि किसी और का मुकद्दर बना दे। हसाम ने इसकी सोच के कई दर वार कर दिए थे। अफ़ग़न अफरोज़ के दिमाग में झमाका हुआ था। शाम के साए ढल चुके थे। पूरी कायनात पर मिर्जा सा अंधेरा फैल रहा था। वो वापस घर आ रहा था। सड़क पर भागती दौड़ती गाड़ियों में इसकी गाड़ी की स्पीड सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि वक्त कम था और इसे वक्त पे पहुंचना था। वो काफ़ी तेज़ ड्राइविंग कर रहा था, इसीलिए बड़ी जल्दी घर पहुंच गया था। चौकीदार ने इसकी गाड़ी देखते ही गेट खोल दिया था। इस सिल्वर कलर की प्राडो फराटे भरती हुई अंदर गेट के सामने वाली रोश पर आ रुकी। गाड़ी से उतरकर वो लंबे लंबे ढाक भरता हुआ अंदर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। इसने ड्राइंग रूम में बैठी दादी बी को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। दादी बी इसके सलाम से ही चौंक गई। उन्हें इसका लहजा बदला हुआ महसूस हुआ था। कैसी तबीयत है आपकी? वो चंद कदम चलता हुआ इनके करीब आ गया था। मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। दादी बी इसके बदले हुए तेवर भांप चुकी थी। मैं ठीक हूँ। वो लड़की कहाँ है? अफ़ग़न अफरोज़ ने माहिदा के बारे में पूछा, लेकिन कतराए हुए अंदाज में। कौन लड़की? दादी जान तो चुकी थी, लेकिन इसके मुंह से उगलवाने के लिए जानबूझकर इस्तफसार किया था। वही लड़की जो यहाँ काम करती है। वो नाम लेने से गुरेज कर रहा था। अच्छा, ईशा की बात कर रहे हो? वो किचन में है। उन्होंने किचन की तरफ इशारा किया। वो नहीं, मैं दूसरी लड़की की बात कर रहा हूँ। दूसरी लड़की कौन है इस घर में? वो झुंझला कर बोली थी। वो क्या नाम है इसका? हाँ मायदा, इसकी बात कर रहा हूँ। वो अच्छा, तो यूँ कहना कि तुम अपनी बीवी की बात कर रहे हो। वो भला कहाँ होगी? किचन में खाना तैयार कर रही होगी। दादी बी ने भी अनजान बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे इससे काम है, मैं अभी आता हूँ। वो कहकर ड्राइंग रूम से निकल आया। इसका रुख किचन की तरफ था। बस भी करें छोटी बेगम साहिबा, इस हंडिया को और कितना भूनना है? ईशा की आवाज़ किचन से बाहर तक आ रही थी। दादी भी बता रही थी, जब तक हंडिया अच्छी तरह भुनी हुई ना हो अफ़ग़न को पसंद नहीं आती। वो सालन यूं ही छोड़ देते हैं। खैर, आप सिर्फ हंडिया की ही बात ना करें, उन्हें तो लोग भी भुने हुए ही पसंद हैं, और जो भुने हुए नहीं होते इन्हें वो खुद भून देते हैं। ईशा मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली थी। ये क्या बदतमीज़ी है ईशा? वो साहब हैं तुम्हारे, इनके बारे में बात करते हुए तमीज़ से काम लिया करो। मायदा ने इसे फ़ौरन डांट दिया था। इसे ईशा का यूँ मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा था। सॉरी बेगम साहिबा, मैं तो बस तुम दादी बी से और मुझसे हंसी मजाक कर लेती हूँ, यही काफ़ी है। लेकिन इससे ज़्यादा ओवर होने की ज़रूरत नहीं है। मायदा ने ईशा को इसकी हद याद दिला दी थी, और अफ़ग़न अफरोज़ इसका अंदाज़ देखता रह गया। मायदा, इसने बमुश्किल इसे नाम से पुकारा था, और चूल्हे का बटन बंद करती मायदा इसकी आवाज़ पर एकदम करंट खाकर पलटी थी। इसे यकीन नहीं आया था कि इसे अफ़ग़न अफरोज़ ने पुकारा है। आपने मुझे बुलाया है? इसकी बेयकीनी इसके लहजे में भी समाई हुई थी। हाँ, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो सर हिलाकर कहता हुआ वापस पलट गया, और मायदा हाथ में पकड़ा छोटा सा कपड़ा ईशा को थमाते अपना दुपट्टा दुरुस्त करती हुई बाहर निकल आई थी। अल्लाह खैर। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इसने अल्लाह से खैर की दुआ मांगी। दिल अजीब सा धड़क रहा था, क्योंकि अफ़ग़न अफरोज़ ने पहली बार इसे पुकारा था और इसने पहली बार इसका ये रूप देखा था। इसीलिए धड़कते दिल के साथ इसने बमुश्किल अपनी तमाम हिम्मतें मुश्तमा करते हुए अंदर कमरे में कदम रखा। वो सामने ही मुंतज़िर खड़ा नज़र आया था। जी, वो इसके सामने आ खड़ी हुई थी। मेरे दोस्त हसाम को जानती हो ना? जी, इसने इस बात में सर हिलाया। कल इसकी शादी थी। तो मायदा ने सवालिया नज़रों से देखा। आज इसका वलीमा है। ज़िंदगी में पहली बार अफ़ग़न अफरोज़ को बात करते हुए मुश्किल पेश आ रही थी। इस लड़की को जिसे वो हमेशा से धुतकारता आ रहा था, इसे आज यूँ एकदम से बीवी का दर्जा देना और इस तरह बात करना बड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर वो एक लफ्ज़ी सवाल कर रही थी। इसने हमें वलीमे के फंक्शन में इनवाइट किया है। इसकी बात पर मायदा ने पलकें उठाकर बरह रास्त इसकी बोझल आंखों में देखा था। इसने तो गालिबन कल भी इनवाइट किया था।
हाँ किया था, लेकिन कल मैं जल्दी में था, इसलिए अकेला ही चला गया। इसने बात टाली। जल्दी में तो आप इस वक्त भी हैं। मायदा ने इसे लाजवाब कर दिया था। क्या इरादा है तुम्हारा? क्या तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती? इसने ज़रा भर कर दो टोक पूछा। जाने को तो आप मुझे जहन्नुम में भी ले जाएंगे तो साथ चलूंगी, इनकार का तो कभी सोच भी नहीं सकती। वो हल्के से सर झटक कर बोली। तुम्हारे पास फंक्शन में पहनने के लिए साड़ी होगी? अफगन अफरोज ने अपनी नफरत का सर कुचलते हुए मुश्किल सवाल किया। आपने पहले कभी मुझे साड़ी पहने देखा है? लेकिन आज मैं तुम्हें साड़ी में देखना चाहता हूँ, इसने फैसलाकुन अंदाज में कहा। साड़ी में देखना चाहते हैं या साड़ी में दिखाना चाहते हैं? अफगन अफरोज इसकी बात पर ठटक गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? इसने तेवरी बल डालते हुए पूछा था। मेरे मतलब को छोड़े, आप अपनी बात करें। क्या कह रहे थे आप? मेरे साथ मार्केट चलो, किसी अच्छी बुटीक से साड़ी लेकर आते हैं, टाइम बहुत कम है, चलो मेरे साथ। वो कहते हुए दरवाजे की सिमत बढ़ गया। मैं मार्केट नहीं जाऊंगी। वो अपनी जगह से खड़ी हुई। इसने अफगन अफरोज के पीछे कदम नहीं उठा बढ़ाए। क्यों? वो दरवाजे के करीब जाकर रुक गया। क्योंकि मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, इसने साफ इनकार कर दिया। क्यों नहीं पहनोगी? क्या बुराई है साड़ी में पहनने में? वो दोबारा इसके सामने आ खड़ा हुआ। तो इसमें अच्छाई क्या है? इसने उल्टा अफगन से सवाल कर डाला। क्या ये अच्छाई कम है कि ये लिबास मुझे पसंद है, मैं तुम्हें पहनने के लिए कह रहा हूँ? वो अपना मिजाज ठंडा रखते हुए धीमे लहजे में बात कर रहा था। आपने सिर्फ मुझे साड़ी पहनने के लिए कहा होता तो शायद मैं सारी जिंदगी साड़ी अपने तन से जुदा ना करती, लेकिन अफसोस कि आपकी ये फरमाइश सिर्फ मेरे लिए नहीं है। मायदा ने इसे लेक्चर दे डाला था और अफगन अफरोज इसके इस लेक्चर पे चौंक गया था। आप फैसला कर लें, मैं तब तक दादी को बताकर आती हूँ कि मैं आपके साथ जा रही हूँ। वो कहकर बाहर निकल गई थी और अफगन अफरोज वहीं बेड पर बैठ गया था। वो तैयार होकर बेडरूम से बाहर निकली ही थी कि सामने से आते अफगन अफरोज के कदम बुरी तरह ठटक कर थम गए थे। पहली नज़र में तो वो पहचान ही नहीं पाया था कि वो आम से हुलिये में रहने वाली आम सी लड़की मायदा ही है। अफगन की नज़रें बेयकीन थीं, शायद इसलिए कि इसने इसे इस तरह पहली बार देखा था, वरना आज से पहले जब भी इसे देखा था होशो हवास से बेगाना होकर देखा था। नशे की हालत में तो इसे ये भी पता नहीं चलता था कि वो अच्छी तरह लग रही है या बुरी, लेकिन आज इसे ये देखकर लग रहा था कि वो आम सी लगती है, पर आम सी है नहीं। वो कितनी ख़ास है ये तो वो जानता ही नहीं था, इसीलिए तो इसे गहरी नज़रों से देख रहा था। वो स्याह रंग के बेहद कीमती लॉन्ग शर्ट और चूड़ीदार पिजामे में मलबूस थी। इसके दुपट्टे और कमीज़ पर स्याह ही रेशमी धागे से कामदार बॉर्डर बना हुआ था और इसमें कहीं-कहीं सिल्वर कांच के मोती चमक रहे थे, जैसे काली रात में चमकते सितारे। इसने हमरंग हील वाली सैंडल पहन रखी थी। बालों को हेयर पिन्स की मदद से तीखा सा हेयर स्टाइल बना दिया था और हल्के फुल्के मेकअप के साथ इसकी शफाफ दमकती जिल्द और भी जगमगा रही थी। ज्वेलरी में इसने अवीज़े और सिर्फ ब्रेसलेट पहना हुआ था। अफगन अफरोज तो इसको देखता रह गया था। वो कितनी खूबसूरत और पुरकशिश लग रही थी, वो इसे बता भी नहीं सकता था। चलें? मायदा इसे एक ही जगह ठहरे देखकर खुद ही करीब आ गई थी। हाँ हाँ चलें, वो चौंक कर मुतवज्जा हुआ था। मायदा इसके साथ सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आ गई। खुदा हाफिज़ दादी भी। वो इन्हें खुदा हाफिज़ कहता कहते ड्राइंग रूम में आई थी। माशाअल्लाह, अल्लाह नज़रे बद से बचाए, अल्लाह मेरे बच्चों को की जोड़ी सलामत रखे, फ़ी अमान अल्लाह। उन्होंने इन दोनों की बलाएँ ले डाली थी और इन्हें दुआओं में रुख़सत किया था। मैंने हस्साम और इसकी वाइफ़ के लिए शादी का गिफ्ट लिया था, लेकिन कल इसे दे नहीं सका। गाड़ी में ही रह गया था, इसलिए अब ये गिफ्ट तुम इन्हें अपनी तरफ से दे देना। अफ़गर ने गाड़ी की पिछली सीट पर रखे गिफ्ट की तरफ इशारा किया। अपनी तरफ से क्या? मैं और आप अलग हैं? माहिदा ने नुक्ता उठाया। कह सकती हो, इसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए बेनियाज़ी से कहा। कह तो मैं और भी बहुत कुछ सकती हूँ, लेकिन डरती हूँ आपको तकलीफ़ ना हो। इसका लहज़ा तंज़िया था। मेरी तकलीफ़ से ना डरो, अपनी तकलीफ़ से डरो कि तुम्हें अपने किए पे सज़ा भी मिल सकती है, और मेरी दी हुई सज़ा को तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हाँ, इस मामले में तो वाक़ई खुशकिस्मत हूँ कि आपने आज तक अगर सज़ा दी है तो सिर्फ़ मुझे ही दी है, वो भी इन गुनाहों की जो मैंने नहीं किसी और ने किए हैं। माहिदा के लबो लहजे में तल्ख़ी उतर आई थी और इससे पहले कि वो कुछ कहता अचानक इसका मोबाइल बज उठा। इसने सेल निकालकर नंबर देखा, नंबर अजनबी था। हेलो, अफ़गन अफरोज़ स्पीकिंग। इसने बहुत नफ़े-तुले और शाइस्ता से अंदाज़ में कहा। अस्सलाम वालेकुम बेटे, बेटा कैसे हो? दूसरी तरफ किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन वो पहचान नहीं पाया था। अब अफ़गन के लिए ये आवाज़ सरासर अजनबी थी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कौन हैं? इसने ज़रा उलझ कर पूछा था। बेटा, मैं हलीमा बात कर रही हूँ, मायदा की अम्मी। उन्होंने अपना तारुफ करवाया। मायदा की अम्मी? अफ़गन अफरोज़ ने खुद कलामी के से अंदाज में कहते हुए ज़रा सी गर्दन मोड़कर मायदा की सिम देखा था, लेकिन मायदा इसके मुंह से अपनी माँ का जिक्र सुनकर बुरी तरह चौंक गई थी और न जाने क्यों पल भर में इसके चेहरे की रंगत भी मुतगैर हो गई थी। लेकिन शुक्र था कि इसके ऐसे तासुरात और ऐसी कैफियत
का अफगन अफरोज ने कुछ खास नोटिस नहीं लिया था, शायद इसलिए कि इसका ध्यान पहले ही दो तरफ बटा हुआ था, एक ड्राइविंग की तरफ और एक फ़ोन की तरफ। कैसी हैं आप? न जाने वो किस मूड में था कि इनका हालचाल भी पूछ रहा था, वरना पहले तो इसने ये ज़हमत भी नहीं की थी। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ कैसे हो? उन्होंने काफ़ी झिझक कर पूछा था, क्योंकि पहले इससे बात जो नहीं हुई थी। मैं भी ठीक हूँ, आप सुनाएं, आज आपने कैसे याद कर लिया? वो हलीमा बी से बात तो कर रहा था, लेकिन मायदा का दिल अंदर ही अंदर घबरा रहा था। इसकी बेचैनी इसकी हथेलियों में उतर आई थी। बस बेटा, इतने दिन हो गए थे, मायदा की तरफ से कोई खैर खबर नहीं मिली, इसलिए सोचा आज खुद ही पता कर लूँ। काफ़ी देर से तुम लोगों के घर के नंबर पर फ़ोन कर रही थी, लेकिन किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया, इसलिए परेशान होकर तुम्हारे नंबर पर फ़ोन कर दिया। अब पता नहीं तुम मसरूफ़ थे या फ़ारिग, मैं तो अपनी परेशानी में तुम्हें डिस्टर्ब कर बैठी हूँ। वो शर्मिंदा से लहजे में बात कर रही थी। अफ़ग़ान अफ़रोज़ को इनकी शर्मिंदगी पर खुद शर्मिंदगी महसूस हुई थी। आज ज़रा देर के लिए ही सही वो सदमेहरी के होल से निकला हुआ था, इसलिए महसूसात जागे हुए थे। तभी इसे शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक फ़ंक्शन में जा रहे हैं, मायदा भी साथी है, आप इससे बात कर लें, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, खुदा हाफ़िज़। इसने इनकी झिझक और शर्मिंदगी महसूस करते हुए मोबाइल मायदा की तरफ बढ़ा दिया था, और मायदा ने बमुश्किल अपने तासुरात कंट्रोल करते हुए मोबाइल इसके हाथ से लेकर कान से लगाया था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, इसका लहजा बेहद धीमा और आवाज़ दबी-दबी सी थी। वालेकुम अस्सलाम, मेरी बच्ची कैसी हो? इतने दिनों से माँ की कोई खैर खबर नहीं ली तुमने और इनका अपना हाल-चाल बताया। वो बहुत प्यार और मोहब्बत भरे लहजे में पूछ रही थी। इनकी इस उदासी मायदा को इनके लहजे से महसूस हो गई थी। बस घर के कामों में और दादी बी के साथ वक़्त गुज़रने का पता ही नहीं चलता, और आपके पास तो फ़ोन भी नहीं है जिस पर कॉल करके मैं आपकी खैर खबर ले सकूँ। शेख साहब का फ़ोन है तो सही, हलीमा बीबी बेसाख्तगी में कह गई, लेकिन फिर खुद ही चुप भी हो गई थी। लेकिन इसी ज़रा सी देर में मायदा के जिस्म का सारा खून जैसे ज़र पड़ गया था। इसने बेसाख्ता हाथ में पकड़े टिश्यू से अपने पेशानी और चेहरे से नादीदा पसीने को थपा कर खुश किया था। ठीक है अम्मी, आप फ़ोन बंद करें, मैं खुद आपका कॉल कर लूँगी, इस वक्त हम रास्ते में हैं। इसने फ़ौरन उन्हें टाल दिया, लेकिन वो इसकी कैफियत समझ गई थी। ठीक है, अल्लाह तुम लोगों को खैर आफियत से मंजिल पर पहुँचाए, हम बाद में बात कर लेंगे। अपना ख्याल रखा करो, अल्लाह हाफिज़। उन्होंने भी बात को तूल दिए बगैर बात समेट दी थी, और मायदा ने गहरी सांस खींचते हुए फ़ोन बंद कर दिया था, और अपने आप को पुरसुकून के लिए अपना सर सीट की पिच से टिकाकर आंखें मौन ली थीं, और इसके बराबर वाली सीट पर बैठा अफ़ग़ान अफ़रोज़ बज़ाहिर तो ड्राइविंग में ही मसरूफ़ नज़र आ रहा था, लेकिन इसका ध्यान कहीं और था। मायदा हरगिज़ नहीं जान सकी थी अपनी माँ की कॉल पर तुम इतना घबरा क्यों गई थी? इसके गहरे हुए लहजे और मुहम से सवाल पर मायदा ने करन खाकर पट से आंखें खोल दी, और अफ़ग़ान फ़रोज़ की तरफ अजीब बदहवास और मुतवश्शिश सी नज़रों से देखा था, गोया वो इसकी कैफियत और इसके तासुरात से इतना अनजान नहीं था जितना नज़र आ रहा था। वो एक नज़र में ही इसकी कैफियत फ़ौरन भाप गया था। ले, क्या बात है? मेरी सवाल पर तुम और भी घबरा गई हो? इसने सामने विंडो स्क्रीन से नज़रें हटाते हुए मायदा के चेहरे को बगौर देखा था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, इसने फ़ौरन नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। तुम्हारे चेहरे से तो ऐसी ही बात नज़र आ रही है, वो बड़े यकीन से कह रहा था। मायदा ने इसकी बोझल मगर गहरी नज़रों के खौफ से पलकें झुका लीं। नहीं, बस मेरा इनकी तन्हाई और अकेलेपन के ख्याल की तरफ ख्याल चला गया था। तन्हाई और अकेलापन? जी, जब मैं इनके पास थी तो इन्हें बड़ा सहारा रहता था, काम काज भी नहीं करना पड़ता था, और अगर वो बीमार होती थी तो तब भी मैं ही इनका की देखभाल करती थी। मगर अब तो इनके पास कोई भी नहीं है, वो दिन अकेले घर में गुजर सारा दिन अकेले घर में बैठे गुजर जाता होगा। अपनी माँ की परेशानी के ख्याल से ही मायदा की आंखें नम हो गई थी। क्यों अकेले, क्यों? इनके हस्बैंड, मेरा मतलब है कि तुम्हारे वालिद साहब, वो भी तो होते हैं, इनकी तरह, इनके होते हुए भी अकेलापन होता है? इसने ज़रा सी हैरानी जाहिर की। जी, वो अपनी शॉप पर होते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, इसीलिए दिन का वक्त तो अकेले ही गुजरता है ना। वो तो हर बीवी का गुजरता है, लेकिन जिन बीवियों के पास बच्चे होते हैं इनका वक्त अच्छा गुजर जाता है। जब मैं इनके पास थी तब इनका वक्त भी अच्छा ही गुजरता था। अब मेरी शादी के बाद इन्हें तन्हाई और अकेलापन महसूस होने लगा है। मायदा खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुकी थी, इसलिए आसानी से बात कर ली थी। हम ये भी ठीक कह रही हो तुम, जिन औरतों के पास बच्चे हों वो मसरूफ़ रहती हैं। बच्चे वाक़ई बहुत प्यारे, और अपनी धुन में कहते-कहते इसे न जाने क्या ख़्याल आया कि इसने एकदम लब भींच लिए। इसने नॉर्मल से चेहरे पर सर्द व सपाट की कैफियत जम गई थी। मायदा पलकें उठाकर इसकी खामोशी पर इसका बगौर जायज़ा लिया था। वो जान चुकी थी कि इसकी खामोशी का सबब क्या है। इन दोनों के ज़हनों में अपनी-अपनी अज़ियत के चक्कर से चल रहे थे, और वो दोनों सोचों की तेज़ आंधी में भटकते हुए अपनी ज़िंदगी और अपने हाल से कहीं पीछे
कई कदम पीछे चले गए थे। वो ड्राइव कर रहा था और वो सीट से सर टिकाए बैठी सामने सड़क पर देख रही थी। हलीमा बीबी को तकरीबन 3 घंटे हो गए थे बाज़ार गए हुए, लेकिन अभी तक इनकी वापसी का कोई इम्कान नज़र नहीं आया और इसकी जान खुश पत्ते की तरह लरज़ रही थी। वो एक-एक सेकंड, मिनट और घड़ियाँ गिन रही थी। जैसे-जैसे वक़्त आगे बढ़ रहा था, इसका खून खुश्क हो रहा था वो और हथेलियों में ठंडा पसीना उतर रहा था। दिल अजीब-सी घबराहट का शिकार था। इसने 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के खुद पर फूँकी और माँ की वापसी की दुआ करने बैठ गई। अभी चंद सेकंड ही गुज़रे थे कि दरवाज़े पर ज़ोरदार दस्तक हुई। इसका दिल उछलकर हलक में आ गया था। इसकी बदहवासी का ये आलम था कि इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि यही पूछ लेती कि बाहर कौन है। वो लब को सिए चुप बैठी रही, मगर दूसरी बार दरवाज़ा पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से बजा था और अब की बार चुप रहना मुश्किल था। कौन है? इसने इसके हलक से मुश्किल आवाज़ बरामद हुई। मैं हूँ शेख समान, दरवाज़ा खोलो। बाहर से सुनाई देने वाली आवाज़ ने इसके हाथ पैर सुन कर दिए थे। वो जिस अफरियत से बचने के लिए तमाम दरवाजे बंद किए बैठी थी, वही दरवाजे पर खड़ी इसे दरवाज़ा खोलने को कह रही थी। मगर अम्मा तो घर पर नहीं है। इसने जैसे दरवाज़ा ना खोलने का बहाना ढूँढा था। अम्मा घर पे कैसे होंगी? अम्मा तो बाहर खड़ी हैं। तेरी शेख ज़मान की चिबाई हुई आवाज़ सुनाई दी थी बाहर। इसे यकीन नहीं आया था। मायदा, दरवाज़ा खोलो बेटा, क्या बहस लगा रखी है? बाहर से अम्मा की आवाज़ सुनाई दी तो इसके जिस्म में जान दोबारा से सरायत कर गई थी। वो पलक झपकते ही इसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया था और दरवाज़ा खुलते ही जहाँ अम्मा ने इसे ताज्जुब आमेज़ नज़रों से देखा था, वहीं शेख ज़मान ने इसे बड़ी खुशमगीन नज़रों से देखा था। वो अपने पसीने से नम आलूद पेशानी दुपट्टे से पोंछती हुई सामने से हट गई और दोनों अंदर आ गए थे। क्या बात है, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? अम्मा ने हाथों में पकड़े थैले बरामदे में बिछे तख्त पर ढेर कर दिए थे। सौदा सल्फ काफ़ी ज़्यादा था। इनके बाजू थक चुके थे। मायदा फ़ौरन बावर्ची खाने में जाकर इनके लिए पानी ले आई थी। तुम्हारी अम्मा पूछ रही हैं कि तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? इसकी खामोशी पर शेख ज़मान ने जानबूझकर अम्मा का सवाल दोहराया। वो मैं समझी कि आपकी दुकान से कोई लड़का आया है किसी काम से और अम्मा का पूछ रहा है, इसलिए मैंने कह दिया कि अम्मा घर पर नहीं है। इसने बर्वक्त बहाना तरतीब दिया था। हालाँकि मैंने खुद बोलकर बताया था कि मैं हूँ शेख समान। शेख समान ने अपनी बात पर जोर देकर कहा था। मैंने सुना नहीं था। इसने नफ़ी में सर हिलाया। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अम्मा की साँसें हमवार हुई तो बेटी के चेहरे की सिम देखने का ख़्याल आया था। न नहीं, मैं भला क्यों घबराऊँगी? इसने अपने आप को सँभलते हुए कहा और नज़रें चुरा ली थी। आज गर्मी बहुत है, बार-बार पसीना आ रहा है। अच्छा हुआ आप पहले आईं, वरना मैं तो नहाने जा रही थी और आप गली में खड़ी होके मेरा इंतज़ार ही करती रहती। वो बात को इधर-उधर टालते हुए कमरे से अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में घुस गई। काफ़ी देर ठंडे पानी से शावर लेने के बाद इसके एसाब ढीले पड़ गए थे और दिलो-दिमाग भी पुरसुकून हो चुके थे, क्योंकि अभी ऐसी कोई डर, कोई खौफ नहीं था। अब अम्मा जो घर पे थीं, लेकिन शेख समान की फ़रमाइश ने इसका सारा सकून गारत कर डाला। इसके एसाब में फिर से तनाव आ गया था। हलीमा, मैं अंदर कमरे में पंखे के नीचे बैठता हूँ, तो एक गिलास शरबत का बनवा के अंदर कमरे में भेज दे। आज गर्मी बहुत है, बार-बार प्यास लग रही है। वो मायदा पर एक चीरती हुई नज़र डालकर अंदर चला गया था और मायदा तिलमिलाकर रह गई। ज़ाहिर है अम्मा थकी हुई आई थीं और भला शरबत कैसे बनाती? शरबत तो इसी ने बनाना था। और कमरे में इसे देखकर भी इसी ने आना था। यही सोचकर वो पैरों के तलों से सर की चोटी तक जल उठी थी। इनकार करना भी फ़िज़ूल था। यकीनन वो थोड़ी देर बाद कोई और काम कर देता, कह देता, इसलिए बेहतर था कि वो शरबत ही बना देती। इसने सच होकर मुठियाँ और लब बींच लिए थे और कदम बावर्ची खाने की सिमत बढ़ा दिए थे। थोड़ी देर बाद इसने खुद पर जबर करते हुए शरबत बनाया और शेख समान के कमरे में पहुँचा आई थी। लेकिन इस आने में और जाने के दौरान माहिदा को लगा शेख ज़मान की हवस ज़दा नज़रें इसके जिस्म के साथ चिपक के रह गई हों। वो इन नज़रों ने इसे गलीज़, नापाक और गंदा करके रख दिया हो। इसकी चीरती हुई नज़रें मायदा की रूह का अज़ाब बन चुकी थीं। वो इस अज़ाब के एहसास से वो अंदर ही अंदर तिलस के रह जाती थी। बेबसी, बेपनाह थी, कोई राह फ़रार नहीं थी। रात के 12:15 बजे का वक्त था, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया था। वो दादी भी डाइनिंग रूम में बैठी हमेशा की तरह इसके इंतज़ार में थी। मुताला करना इनका बहुत पुराना शौक़ था, जो बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे और गरीबी से अमीरी तक इनके साथ आया था। और इनके इसी शौक़ की खातिर इसके इकलौते और लाडले पोते ने इन्हें घर में बाकायदा एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दी थी। अलबत्ता इनके दिल में कुछ और ख्वाब, कुछ ख्वाहिशें और कुछ अरमान भी हैं, ये जानने की इसने कभी ज़हमत ही नहीं की थी। वो इनके वही शौक़ पूरे करता था जो इसकी अपनी ज़ात से मंसूब नहीं होते थे। और दादी भी को भी इस बात का कलक रहता था कि वो इनकी हर बात मानता है, हर तरह का ख्याल रखता है, लेकिन इस मामले में आकर लापरवाही, बेनियाज़ी और सदमहरी बरत जाता है। इनके दिल के अरमानों और ख्वाहिशों से नज़रें चुरा के गुजर जाता है, ये एहसास के बिना कि इनकी उम्र ऐसी नहीं थी जहाँ वो अरमानों के पूरा होने का इंतज़ार करती। और
ان کا تو یہ معاملہ تھا کہ آج ہیں کل نہیں۔ اس نے تو دل کو پتھر اور احساسات سے عاری کر لیا تھا، اور اسی لیے وہ رنجیدہ اور غمزدہ رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ تھا کہ جیسے شہر ہی چھوڑ گیا تھا۔ بالآخر وہ خود ہی اٹھی اور فون سیٹ کے پاس آ گئیں۔ اس کا نمبر ڈائل کیا اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی، لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ پھر بھی وہ مسلسل کوشش کر رہی تھی، اور ایک بار ان کی کوشش کامیاب ٹھہر ہی گئی۔ ہیلو! اس کی بھاری گمبھیر اور بوجھل آواز پر ان کا دل کٹ کے رہ گیا۔ افغان، وہ بڑے دکھ سے بولی تھی۔ ڈونٹ وری، میں آ رہا ہوں۔ اس نے یہ مختصر سے الفاظ میں کہہ کر فون بند کر دیا، اور وہ بند ریسیور کو دیکھتی رہ گئی۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں دکھ سے آنسو آ گئے تھے۔ اب وہ اسے کیا کہتی کہ وہ انہیں بڑھاپے میں ستا رہا ہے، انہیں بے وجہ اذیت دے رہا ہے، ان کے دل پر رنج کا بوجھ بڑھا رہا ہے۔ لیکن اگر وہ اسے کہہ بھی دیتی تو اس پر بھلا کیا اثر تھا؟ وہ چل چل کر تھکنے لگی تھی جب باہر گیٹ پر گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا۔ پھر ذرا توقف سے گیٹ کھلنے اور گاڑی گراج میں رکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ رفتہ رفتہ کوریڈور میں بھاری قدموں کی چاپ ابھرتی ہوئی قریب چلی گئی۔ ڈرائنگ روم کے داخلی دروازے پر آ کر یہ چاپ بھی ٹھہر گئی۔ انہوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا۔ خیریت؟ آپ بار بار فون کر رہی تھی؟ مختصر سے الفاظ میں پوچھا گیا۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں کیوں بار بار فون کر رہی تھی؟ انہوں نے خفگی سے کہا۔ آئی ایم سوری، میں بزی تھا، پہلے سے بھی مختصر جواب آیا۔ تم فارغ کب ہوتے ہو؟ ایک دادی رات بھر پوتے کے لیے جاگ کر اس کی واپسی کی راہ دیکھتی ہے، اور پوتا آ کے پوچھتا ہے کہ آپ کو کوئی کام تھا؟ وہ بڑے دکھ اور کرب سے بولی تھی، لیکن پوتے کو شرم کب تھی بھلا؟ تو پھر کیوں جاگ رہی ہیں؟ 1000 بار کہہ تو چکا ہوں کہ میرا انتظار مت کیا کریں۔ دل چاہے گا تو گھر آؤں گا، ورنہ نہیں آؤں گا۔ آپ کب تک اپنی بوڑھی ہڈیوں کو میرے انتظار میں لٹکائے رکھیں گی؟ آپ جس افغان افروز کے انتظار میں بیٹھی ہیں وہ تو کب کا مر چکا ہے، اب کبھی نہیں آئے گا۔ مت کیا کریں اس کا انتظار۔ وہ یکدم غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ وہ تھی تو تمہیں سب سے محبت تھی، وہ چلی گئی تو ساری محبتیں بھی چلی گئی۔ کیا تمہیں اب اپنی دادی بھی پوری لگنے لگی ہے؟ اگر اتنی ہی پوری لگتی ہوں تو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دو اور اکیلے رہو اس گھر میں، تاکہ نہ تمہیں میری پرواہ کرنی پڑے اور نہ مجھے تمہاری۔ وہ رو رہی تھی اور وہ لب بیچ کے رہ گیا۔ یہاں میرے اندر کی ساری محبتیں مر چکی ہیں۔ احساس مر گیا ہے، کسی کی پرواہ نہیں رہی مجھے، اور یہ بات آپ خود اچھی طرح جانتی ہیں۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ افغان افروز اس وقت زندگی نبھا رہا ہے، صرف اس لیے کہ کہیں میری موت کو وہ اپنی بے وفائی کا صدمہ نہ سمجھ لے، ورنہ مر تو میں اسی دن گیا تھا جس روز وہ کہتے کہتے اچانک اس نے لب بھیج لیے۔ اس کی زبان کو زیب نہیں دیا تاکہ وہ بات مکمل کرتا۔ لیکن دنیا اس لڑکی پہ ختم نہیں ہو جاتی۔ دادی بھی ساری باتیں، ساری حقیقتیں جانتی تو ہیں آپ، پھر کیوں بھول جاتی ہیں؟ میری دنیا اس لڑکی پہ ہی ختم ہوتی تھی اور اس لڑکی پہ ہی ختم ہو گئی۔ وہ بولا مگر تلخ اور استفسائیہ سا۔ پلیز دادی بھی، اب اس ٹاپک کو یہیں ختم کر دیں، رات کے اس پہر کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے سر درد کے۔ اس نے سختی سے کہتے ہوئے انہیں روک دیا تھا اور پلٹ کر سیڑھیوں کی سمت بڑھ گیا۔ افغان، وہ بے بسی سے زچ ہو کر پکاری۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں دادی بھی، ان باتوں کے لیے یہ وقت موزوں نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں کسی اور وقت پر اٹھا رکھیں۔ اس وقت گہری نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بے نیازی سے کہا اور سیڑھیاں چڑھ گیا تھا، اور وہ وہیں کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ وہ واقعی بے حس ہو چکا تھا، اب تو ان کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا ورنہ پہلے تو وہ مالی سے پورے لان کی کاٹ چھانٹ کروا کے پودوں کو پانی دے کر فارغ ہوئیں تو اچانک انہیں وقت کا احساس ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے ابھی افغان کے لیے ناشتہ بھی بنانا تھا۔ اس لیے اپنے سارے کام وہ پس پشت ڈالتے ہوئے اندر آ گئیں۔ عائشہ ڈرائنگ روم اور ٹی وی لاؤنج کی صفائی میں مصروف تھی۔ وہ شروع سے ہی افغان افروز کے کھانے پینے کی اشیاء خود تیار کرتی تھیں۔ اس کے سارے کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ ناشتہ بنا کر انہیں نے عائشہ سے کہا، اوپر جاؤ اور افغان سے کہو ناشتہ تیار ہو چکا ہے، جلدی آ جائے ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ انہوں نے عائشہ کو اوپر بھیجا اور وہ مؤدب سے انداز میں سر ہلا کر اوپر چلی گئی، اور وہ خود اس کا ناشتہ لگانے میں مصروف ہو گئیں۔ گڈ مارننگ۔ بے تاثر سا لہجہ تھا، وہ بھلا کیا جواب دیتی؟ خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بھی ان کی خاموشی نوٹ کر چکا تھا، کیونکہ ان کی طرف سے اس کی گڈ مارننگ کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ انہوں نے جوس کا جگ اور گلاس اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ نہار منہ جوس پینے کا عادی تھا، اور ٹھیک 5 منٹ بعد وہ شاندار ڈریسنگ کیے، عمدہ خوشبو لگائے، خوبصورت ہیئر اسٹائل مگر سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے گلاس اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، لیکن دادی بی نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموشی سے اپنے لیے کپ میں چائے ڈالنے لگی۔ شاید رات میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا، مجھے اتنا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔
وہ جوس پینے سے پہلے سر جھکائے آہستگی سے اور سنجیدگی سے ماسط کر رہا تھا، لیکن دادی بی نے ان کی کوئی بھی بات کانوں پر نہیں دھری تھی، جس پر وہ قدرے جھنجھلا گیا تھا۔ دادی بی میں آپ سے مخاطب ہوں، میں سوری بول رہا ہوں آپ سے۔ اس نے گلاس ٹیبل پر پٹک دیا تھا۔ مجھ سے کیوں مخاطب ہو اور کیوں سوری بول رہے ہو؟ کیا اہمیت ہے میری تمہاری نظر میں؟ جیسے گھر کے باقی ملازم ہیں ویسے میں بھی ہوں، بس اتنا فرق ہے کہ وہ کوارٹرز میں رہتے ہیں اور میں تمہارے گھر کے بیڈ روم میں رہتی ہوں۔ تمہارا مجھ پر بھی احسان ہے کہ تم نے مجھے ایک کمرہ دے رکھا ہے، ورنہ روٹی پانی جوتی کپڑا تو باقی سب کو بھی مل رہا ہے۔ وہ بھی کام کرتے ہیں، میں بھی کام کرتی ہوں۔ جب ان کاموں سے ہٹ کے کوئی بات کرتی ہوں تو تمہیں ناگوار گزرتا ہے۔ آخر کو تم مالک ہو، کسی ملازم کی اپنی ذات میں مداخلت ناگوار تو گزرے گی، لیکن تم بے فکر رہو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں پوری کوشش کروں کہ تمہارے کسی بھی کام میں مداخلت نہ کروں جو تمہیں ناگوار گزرے۔ انہوں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا اور رخ موڑ لیا تھا۔ دادی بی آپ مت کہو مجھے دادی بی، میں صرف نام کی دادی بی ہوں، ورنہ میری کیا اوقات ہے۔ خوب جانتی ہوں میں تمہارے لیے وہی اہم تھی جس کے ہجر میں جوگی بنے پھر رہے ہو۔ وہ گئی تو سب کچھ گیا، پوری دنیا ہی ختم ہوگی۔ وہ جب تمہاری دنیا ہی ختم ہوگی ہے تو ہم کس کام کے؟ آج ان کی چپ اور برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اس لیے جو منہ میں آیا کہتی چلی گئی تھی، اور افغان افروز شدت سا بیٹھا ان کی صورت دیکھ رہا تھا۔ میں جیوں یا مروں میری پرواہ مت کرنا، اور تم ہر ناجائز اور غلط کام کرو، گھر آؤ یا نہ آؤ، میں تمہاری پرواہ نہیں کروں گی۔ بھول جاؤں گی میرا کوئی پوتا بھی ہے، بس زندگی کے دن پورے کرنے ہیں، سو ہو ہی جائیں گے۔ تم خود مختار ہو، اپنی مرضی کے مالک ہو، جو چاہے کرو، میری طرف سے آزاد ہو۔ وہ اپنے اندر کا غبار نکال کر کرسی دھکیل کر کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ناشتہ ادھورا پڑا رہ گیا تھا۔ افغان نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ آج تک اس نے جو کچھ بھی کیا تھا یا جو کچھ بھی ہوا تھا، وہ کبھی اس طرح خفا نہیں ہوئی تھی، کبھی غصہ نہیں کیا تھا، کبھی مشتعل نہیں ہوئی تھی، اور آج اگر وہ مشتعل و برہم ہوئی تھی تو اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ آج وہ واقعی کوئی ایسی چوٹ لگی ہے جس کا اثر ان کے دل پر ہوا ہے، ورنہ وہ اپنے لاڈلے پوتے کو اس طرح ڈانٹ دیں کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اسی بات پر افغان افروز کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ دادی بی نے اتنا غصہ اسی پر کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو یقیناً وہ خود بھی بہت بے چین وضعیت میں ہوں گی۔ آخر اس نے ان کا دل کیوں دکھا دیا؟ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ خود بھی بے چین اور مضطرب ہو گیا تھا، اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے نکل آیا، لمبے لمبے ڈھاگ بڑھتا گاڑی تک آیا اور گاڑی نکال لے گیا۔ مائدہ اماں اسے باہر سے آوازیں دیتی ہوئی اندر کمرے میں آ گئی تھی۔ مائدہ، انہوں نے بلاخر اس کے قریب آ کر اسے پکارا تو وہ چونک کر جیسے ہوش میں آئی تھی۔ جی جی اماں، کیا بات ہے؟ وہ ایک دم بستر پر لیٹی ان کی آواز سن کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کہاں کھوئی رہتی ہو؟ میں آوازیں دے دے کر تھک جاتی ہوں، وہ خفگی سے بولی۔ نہیں اماں، ایسے ہی کسی ہوش میں تھی شاید، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پر پھیلا لیا تھا۔ ہر وقت کمرے میں کیوں بیٹھی رہتی ہو؟ کیا ذرا سا کام کیا اور کمرے میں ذرا سا کام کیا، پھر کمرے میں یہ کیا سلسلہ بنا رکھا ہے تم نے؟ کل شیخ صاحب بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ معاہدہ ہم لوگوں سے کھچی کھچی سی کیوں رہتی ہے۔ اماں اس کی بات اس کے قریب اس کے بستر پہ ہی بیٹھ گئی تھی اور معاہدہ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اماں، کام ہی تو کر رہی ہوتی ہوں آپ کے سامنے۔ اس نے ان کی بات ٹالی۔ میں کاموں کی بات نہیں کر رہی، اکیلے بیٹھے رہنے کی بات کر رہی ہوں۔ ہمارے پاس بھی تو بیٹھ سکتی ہو، باتیں کر سکتی ہو، ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ یا پھر یہ کہو کہ تم شیخ صاحب کو ابھی بھی غیر سمجھتی ہو، انہیں باپ نہیں سمجھتی۔ اماں آج اس کے پاس گلے شکوے لے کر آئی تھی، جن کو سن کر معاہدہ کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ جی چاہو پھوٹ پھوٹ کر رو دے اور اپنے اندر کا سارا غبار نکال دے، لیکن اسے پتا تھا کہ اماں اس وقت شیخ صاحب کی حمایت میں بول رہی ہیں، اس لیے اس نے اگر کچھ بھی کہا تو انہیں ناگوار لگے گا، لہٰذا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی رہی۔ مگر اس کی روح کے آنسو اس کے دل پر گرنے لگے۔ اب کیا بات ہے، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ انہوں نے اسے خاموش دیکھ کر دوبارہ متوجہ کیا۔ کچھ نہیں اماں، ایسے ہی اتنے دنوں سے ایک بات سوچ رہی تھی، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہتے ہوئے بے ساختہ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھام لیے۔ اماں نے اس کے انداز پر چونک کر حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسی بات؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ اماں پلیز میری بات کا برا مت منانا، مگر میں گھر میں رہ کر بور ہو گئی ہوں، مجھے ڈپریشن ہونے لگا ہے، میں تھوڑا ٹائم گھر سے باہر گزارنا چاہتی ہوں، میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ آپ یہ مت بولیں کہ میں یہ جاب اپنی تو کوئی ضروریات یا خواہشیں پوری کرنے کے لیے کرنا چاہتی ہوں۔ میں خود اعتمادی ہونا چاہتی ہوں، میرے اندر اعتماد کی کمی ہے، میں یہ کمی دور کرنا چاہتی ہوں۔ اماں میں دنیا کے قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتی ہوں، پلیز اماں، اگر میں اسی طرح چار دیواری میں رہی تو ایک روز میرا دم گھٹ جائے گا اور آپ کو اس کمرے میں میری لاش ملے گی، پلیز مجھے اجازت دے دیں، مجھے کھل کر سانس لینے دیں، مجھے جینے دیں پلیز، اس نے روحان سے لہجے میں کہتے ہوئے جیسے التجا کی تھی، اور ماں اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس کی اس انوکھی فرمائش پر حیران پریشان تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ اماں میں اپنی حالت، اپنی دل کی بات اور کس سے کہوں گی سوائے آپ کے؟ پلیز آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میرے پاس تعلیم ہے، عقل ہے، شعور ہے، مجھے اپنی عقل اور شعور کا استعمال کرنا ہے، پلیز اماں مجھے روکے مت۔ یہ اچانک بیٹھے بیٹھے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کوئی دکھ ہے بھلا؟ انہوں نے خفگی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے تھے۔ اماں یہ میں نے اچانک بیٹھے بیٹھے نہیں سوچا، بلکہ
महीने हो गए ये सब सोचते हुए तो मुझे हैं, बस मैं डरती थी कि आपको मेरी जॉब की फ़रमाइश पूरी लगेगी, लेकिन आप मेरी माँ हैं। आप मेरी ख़्वाहिश पूरी नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? आपकी ये काम मेरी बेसुकून ज़िंदगी में सुकून भर देगी प्लीज़। माहिदा इतनी जज़्बाती हो रही थी कि इसने माँ के सामने हाथ जोड़ दिए थे और अम्मा शिद्दत सी होकर देखने लगी। देखो माहिदा, तुम जानती हो मैं शेख साहब को बताए बगैर कोई काम नहीं करती, इसलिए वो घर आते हैं तो इनसे बात करती हूँ। वो मान गए तो कर लेना जॉब, अगर नहीं माने तो ज़िद मत करना। मैं इनके साथ बहस तो तकरार नहीं कर सकती। वो खफ़गी से कहकर उठ खड़ी हुई। अम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ, शेख साहब की नहीं। मुझे आपकी इजाज़त देनी है और मुझे आपकी ही इजाज़त की ज़रूरत है। वो इजाज़त दें या ना दें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माहिदा बिलाकर कह ही गई थी और अम्मा एकदम पलटकर इसे ताज्जुब भरी बेयकीन नज़रों से देखने लगी। आज वो इन्हें मुसलसल हैरान कर रही थी। क्या कहा तुमने? इनकी हैरानी इनके लहजे से भी झलक रही थी। कुछ गलत नहीं कह रही मैं, आपकी बेटी हूँ मैं, ये हकीकत है। मेरे अच्छे बुरे का ख़्याल आपको होना चाहिए, सिर्फ़ शेख साहब को नहीं। आप इनसे इजाज़त तलब नहीं करेंगी, सिर्फ़ ये बताएँगी कि जॉब करना चाहती हूँ और आज या कल मैं जॉब की तलाश शुरू कर दूँगी। मायदा, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी अजीब-अजीब बातें कर रही हो? तुम होश में तो हो ना? हाँ, अम्मा मैं होश में हूँ, लेकिन आप नहीं हैं। जवान बेटी की माँ हैं आप, लेकिन फिर भी नादान हैं। बाकी माँओं की तरह आँखें और कान खुले रखा करें। जवान बेटी की माएँ गाफ़िल नहीं रहती, हर वक़्त चौकस-ओ-चौकन्ना रहती हैं। आप समझ ही नहीं रहीं। मैं आख़िर ऐसा क्या कहूँ कि सारी हकीकतें आप पर वाज़िह हो जाएँ? माहिदा कहते-कहते बेबसी से झुँझला गई थी। तुम्हारा मतलब है कि मैं कम-अक़ल हूँ, नादान हूँ, तुम्हारा ध्यान नहीं रखती? उन्हें इसकी बात पर अचंभा हुआ था। जी बिल्कुल, ने यही कहा है। इसने सर हिलाकर एतराफ़ किया था और अम्मा दंग रह गई थीं। माहिदा, तुम अपनी माँ को ऐसा आई एम सॉरी अम्मा, आपकी कमअक़ली और नादानी ने आज मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया है, वरना आप खुद अक्लमंद होती तो मेरे कहे बिना ही सब कुछ समझ जाती। मुझे ये ना बताना पड़ता कि अम्मा ज़्यादा देर घर से बाहर मत रहा करें, मुझे डर लगता है। अम्मा रात को नींद की गोली खाकर ना सोया करें, वरना मुझे नींद नहीं आती। आप नींद की गोली खाकर सोती हैं, मेरी नींद उड़ जाती है, सारी-सारी रात जाग के गुज़ार देती हूँ। कभी नहा धोकर नए कपड़े नहीं पहनती, उलझे-उलझे शुगन आलूद कपड़ों और मैले-कुचैले हुलिये में क्यों फिरती हूँ? ज़्यादा हँसती नहीं हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, कमरे से बाहर नहीं बैठती हूँ, चुप रहती हूँ, सोच में गुम रहती हूँ, आखिर क्यों? कभी जानने की ज़हमत की आपने? कई बार कहा अम्मा मैं सिर्फ़ आपकी बेटी हूँ, शेख ज़मान की नहीं। मेरी फ़िक्र में आप जगा करें, शेख ज़मान क्यों जागता है भला? वो अम्मा के कंधों पर दोनों हाथ रखते हुए बोली और एकदम फट पड़ी थी और हलीमा बीबी के कदमों तले से जैसे ज़मीन सिरक गई थी। इनका वजूद जैसे किसी ने धुच्चियों में उड़ा दिया था। वो माहिदा को फटी-फटी आँखों से देख रही थी और माहिदा ज़्यादा देर इनके सामने खड़ी ना रह सकी और वहाँ से निकल आई थी। वो अपने ऑफ़िस रूम में बैठा कुछ ज़रूरी फ़ाइल्स चेक कर रहा था जब इसके कमरे का दरवाज़ा खुला। मे आई कम इन? इसने हसाम की आवाज़ पर चौंका से उठाया। वो दरवाज़े में खड़ा इजाज़त तलब कर रहा था। कम इन? इसने आहिस्तगी से सर हिलाया। थैंक गॉड अंदर आने की इजाज़त तो मिली, वरना तुम्हारी शक्ल देखकर तो यही लग रहा था कि तुम मना कर दोगे। हसाम दरवाज़े का हैंडल छोड़कर अंदर आ गया था। क्या मेरे मना करने से तुम वापस चले जाते? अफ़गान अपने सामने रखी फ़ाइल की बेतरतीब पड़े पेपर्स फेंकने लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हसाम ने नफ़ी में गर्दन हिलाई और इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया था। तो फिर मैं तुम्हें मना क्यों करता जब तुमने मेरी मना करने के बावजूद भी वापस नहीं जाना था? अफ़ग़ान ने कहते हुए फ़ाइल एक तरफ रख दी। देख लो मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। तुम्हारे मना करने के बावजूद भी तुम्हें छोड़ के वापस नहीं जाता। हस्साम ने मुस्कुराकर कहा था, लेकिन अफ़ग़ान अफ़रोज़ के सर्द-ओ-सपाट चेहरे के तासुरात और भी सर्द हो गए थे। इसके चेहरे पर तनाव आ गया था। मोहब्बत का नाम लो और जो चीज़ चाहे कह लो, इसने सपाट से लहजे में कहा। और इंटरकॉम पर हस्साम के लिए चाय ऑर्डर की थी। यानी कि तुम्हारी मोहब्बत खोटी होने की से हमारी सारी मोहब्बतें खोटी हो गई हैं। हमारी अपनायत, हमारा ख़ुलूस, हमारी चाहत सब बेकार है। तुम्हारी नज़रों में तुमने हमारी मोहब्बत को इस मोहब्बत से मशरूत कर दिया जो तुम्हारे लिए कभी थी ही नहीं, जिसने तुम्हें दौलत पर से वार कर एक साइड पर रख दिया है। हसाम को इसकी बात बुरी लगी थी, इसलिए तल्ख़ी से इसे हकीकत का आईना दिखा गया, जिस पर अफ़ग़ान अफ़रोज़ बुरी तरह बिलबिला उठा था। बकवास बंद करो। बकवास बंद हो सकती है मगर हकीकत नहीं, और हकीकत यही है कि तुम अभी तक लकीर पीट रही हो। तुमने बर्बाद कर लिया खुद को। हसाम बाज़ आने वाला नहीं था। मैं बर्बाद हुआ हूँ ना, आप लोगों को क्या तकलीफ़ है? कभी तुम, कभी दादी भी और कभी किसी और को। वो एकदम चीख उठा। इसे दादी भी का सुबह वाला रवैया याद आ गया था। अगर तुम्हें ये एहसास हो जाए कि हमें क्या तकलीफ़ है तो तुम ये सवाल ही ना करो। मगर अफ़सोस तो इस बात का है कि तुम्हें एहसास ही नहीं है। और हाँ, एक एक और गलतफ़हमी में मत रहना कि तुम्हारी बर्बादी पर किसी और को भी तकलीफ़ होगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। तुम्हारी बर्बादी पे अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो वो सिर्फ़ मैं हूँ या फिर दादी भी हैं, किसी तीसरे का सोचना भी मत। अफ़ग़ान अफ़रोज़ का इसकी बातों पर खून खौल रहा था। इस मौज़ू पर आकर इसका बस नहीं चलता था कि लोगों की ज़ुबानें खींच ले या फिर इनकी गर्दनें उड़ा दे। इस मामले में वो बहुत बेरहम और शफ़ाक हो जाता था। अफ़ग़ान अफ़रोज़ का सेल बजने लगा था। हेलो, आवाज़ और अंदाज़ सपाट था। साहब, मैं रशीद बात कर रहा हूँ। हॉस्पिटल से बड़ी बेगम साहिबा का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरी हालत है इनकी, आप जल्दी से आ जाएँ साहब। अफ़ग़ान अफ़रोज़ के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। यूँ लगा कि इस बिल्डिंग का मलबा पूरे का पूरा इनके सर पर आ गिरा हो। दोनों आगे-पीछे तेज़ रफ़्तारी से धड़ाधड़ सीढ़ियाँ उतरते पार्किंग में पहुँचे थे। दादी बी की तकलीफ़ का ख़्याल ही इसके लिए सुहाने रूज़ साबित हो रहा था। वो इसके अपने जिस्म से जैसे जान निकल जा रही थी और ये सोच अगर अलग कुछ होके लगा रही थी कि वो रात के रवैये से नाराज़ थीं।
अगर नाराज़गी में इन्हें कुछ हो जाता तो अफ़ग़न का दिल डूबने लगा था। पूरे 24 घंटे हो गए थे अफ़ग़न और हस्साम को आईसीयू के बाहर इंतज़ार करते हुए। इसने आईसीयू में दाखिल होते डॉक्टर ज़फ़र को बाजू से पकड़कर रोक लिया था। "देखिए डॉक्टर, मैं आपसे माफ़रत चाहता हूँ, मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। अगर दादी बी की हालत आप लोगों के कंट्रोल से बाहर है तो आप मुझे अभी बता दें। मैं इन्हें कहीं और शिफ्ट कर लेता हूँ। मुबारक हो मिस्टर अफ़ग़न, आपकी दादी बी अब खतरे से बाहर हैं।" वो डॉक्टर ज़फ़र से कुछ कह रहा था कि इतने में आईसीयू का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर रिज़वान ने आकर इसे दादी बी की ज़िंदगी की नवीद सुनाई थी। जिस पर डॉक्टर ज़फ़र बेसाख्ता मुस्कुरा दिए थे और अल्लाह का शुक्र अदा किया था। "लेकिन आई एम सॉरी, आपकी दादी भी अब चल नहीं सकती, इनकी टाँगें बहुत मुतासिर हुई हैं।" डॉक्टर रिज़वान की अगली बात ने अफ़ग़न अफरोज़ के पास कई धमाके कर डाले थे। वो एक झटके से इनकी सिमत पलटा था। "ये आप क्या कह रही हैं अब मिस्टर अफ़ग़न, हमें बहुत अफ़सोस है इस बात का, लेकिन हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि इनकी ज़िंदगी तो बच गई है ना, वरना ऐसे शदीद एक्सीडेंट के बाद इनके बचने की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी।" वो इसे समझा रहे थे और अफ़ग़न फटी-फटी आँखों से इनका चेहरा देख रहा था। "अफ़ग़न बैठो यहाँ।" सामने आगे बढ़कर इसे बाजू से थामा, लेकिन अफ़ग़न ज़ब्त ना कर सका और इसके आँसू बह निकले थे। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो रोया था। मैं आपसे एक बात करना चाहती थी। शेख ज़मान खाना खा रहा था जब हलीमा बीबी चारपाई पर इनके करीब ही आ बैठीं। "कहो क्या बात करनी है?" वो इजाज़त देते हुए बोले। किचन के दरवाजे से लगी खिड़ी माइदा का दिल धड़कने लगा था। इसे पूरा यकीन था कि शेख ज़मान इसकी जॉब का सुनकर पुरपुर मुखालफत करेंगे। "मैं कई दिनों से सोच रही थी कि माहिदा पूरा दिन घर में अकेली और फारिग बैठी रहती है, इसलिए बेहतर है कि वो बेकार बैठने के बजाय कोई जॉब कर ले। आपका क्या ख्याल है इस बारे में?" हलीमा बीबी ने बात करते हुए अपनी नज़रें पूरी तरह से शेख ज़मान पर ही जमा रखी थी। लहजा बेहद मजबूत और बेलचक था। "फैसला कौन और दो टोक क्या कहा?" शेख ज़मान का हाथ मुँह में निवाला डालते हुए वहीं ठहर गया था। "जॉब करेगी?" "जी हाँ।" "क्यों?" शेख ज़मान के तेवर बदल गए थे। "क्योंकि मैं चाहती हूँ वो घर पे अकेली और फारिग न बैठे।" आज इनका लहजा और आवाज़ दबे-दबे और धीमे से नहीं थे। वो एक माँ थीं और जब एक माँ अपने बच्चे के लिए अपने मौक़िफ़ पर डट जाए तो इसे इस तरह के मौक़िफ़ से हटाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम बन जाता है। क्यों? क्या इस जैसी दूसरी लड़कियाँ घरों में अकेली और फारिग नहीं बैठी हुई हैं? या फिर ये कहो कि वो घर से बाहर घूमना-फिरना चाहती है? शेख ज़मान को अपना शिकार हाथों से निकलता हुआ महसूस हुआ था। तभी तो वो घटिया तंज पर उतर आए थे। "ज़बान सँभाल कर बात करें शेख साहब, आपकी बेटी है वो।" हलीमा बीबी ने बेटी पर ज़ोर दिया। "मेरी बेटी होती तो मुझसे पूछ के काम करती। दोनों माँ-बेटी ने अंदर ही अंदर सब कुछ तय कर लिया और मुझे अब बता रही हो?" उन्होंने गुस्से से कहते हुए हाथ में निवाला पकड़ा हुआ निवाला वापस ट्रे में फेंक दिया। किचन में खड़ी मायदा का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसे पता था अब ज़रूर कोई न कोई हंगामा बरपा होगा। खबरदार कोई नहीं करेगी नौकरी-वोकरी। इसको ऊँची हवाओं में उड़ने के ख्वाब छोड़े और घर में बैठे। बाहर निकलेगी तो लोग सौ-सौ बातें बनाएँगे कि शेख ज़मान अपनी सतेती बेटी को 2 वक़्त की रोटी भी नहीं खिला सकता है। क्या लोगों के सामने मेरी नाक कटवाना चाहती हो तुम दोनों? शेख ज़मान आपे से पार हो गया था और हलीमा बीबी इसके तासुरात नोट कर रही थीं। "अच्छा, अब आपकी नाक कट रही है और जब हेरा जॉब करती थी तब आपकी नाक नहीं कट सकती थी?" हलीमा बीबी ने शेख ज़मान की बेटी का नाम लिया जिसे वो 1 साल पहले शादी करके रुखसत कर चुका था। वो बच्ची थी, कम अकल थी, नौकरी करने का शौक था उसे। मुझे इसकी बात मानना पड़ी। शेख ज़मान ने ज़रा सँभलते हुए जवाब दिया, "ये भी बच्ची है, कम अकल है, इसे भी शौक है और मजबूरन मुझे इसका शौक पूरा करना ही पड़ेगा। आप ज़्यादा परेशान ना हों, मैंने मायदा से कह दिया है, वो बस कुछ अरसे ही जॉब करेगी और इसके बाद मैं इसकी शादी कर दूँगी, जैसे हिरा और फ़रा की थी, अच्छे और पढ़े-लिखे घरानों में।" हलीमा बीबी ने शेख ज़मान को जताया और वो लब भींच कर रह गए। हलीमा बीबी कहकर वहाँ से उठ गई थीं। "आखिर आप जा कहाँ रही थीं?" अफ़रोज़ दुःख से झुंझलाया हुआ था। "आलिया से मिलने।" वो पलकें मूंदते हुए आहिस्तगी से बोली थीं और अफ़ग़न ने चौंक कर इनका हाथ छोड़ दिया था। "आलिया से मिलने?" अफ़ग़न अफ़रोज़ की आवाज़ जैसे किसी कुएँ से सुनाई दी। "मगर क्यों?" दादी बी की बंद पलकों से आँसू बह रहे थे और अफ़ग़न शतत-सा इनके बूढ़े और झुर्रियों ज़दा चेहरे की सिमत देख रहा था। "ये भीख माँगने जा रही थी, तुम्हारी आज़ादी की इसलिए जा रही थी। कहना था कि मेरे पोते को मज़ीद बर्बाद ना करो। खुद चली गई हो तो अपनी यादें भी ले जाओ। क्यों छोड़ गई हो हर बर्बाद करने के लिए ताकि वो तमाम उम्र इन्हीं यादों में तड़प-तड़प के जीता रहे और मैं अपने पोते को देख-देख कर तड़पती रहूँ हो ना, इसलिए मैं तो इस भीख तक नहीं माँग सकती। मेरी टाँगों ने मेरा साथ ही नहीं दिया, मुझे रास्ते में ही रोक लिया, लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी में एक बार इसके सामने हाथ जोड़कर अपने पोते की आज़ादी ज़रूर माँगूँगी, चाहे वो कहीं भी मिले। इन्होंने जैसे अहद कर लिया। "नहीं दादी भी, हरगिज़ नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिससे मेरी शख्सियत का कोई कमज़ोर पहलू नज़र आए। हमें इसके शहर में नहीं, इसके कब्र में कैद हूँ मैं इसके शहर में नहीं, इसके कब्र में कैद हूँ। इसने क्या सोचकर मेरे साथ बेवफ़ाई की? क्या मैं कुछ भी नहीं था? मैं पागल होता हूँ तो सिर्फ़ ये सोच-सोच कर कि क्या अफ़रोज़ इतना आरज़ां था कि वो दौलत की चमक-दमक में इसे देख ही नहीं पाई? वो दौलत जिसे मोहब्बत करने वाले हाथों का मैल अ, ठुकरा देते हैं और आलिया ने इसी हाथ के मैल को सीने से लगा लिया। वो अंदर से दुखी हो रहा था। जब ही तो दादी भी से सब कह रहा था, "अगर वो हाथों के मैल को सीने से लगाने वाली औरत थी तो तुम क्यों इसे सोच-सोच कर अपना खून जलाते हो?"
वो हाथों का मैल नहीं थी दादी भी, वो मेरी ज़ात का गहरा धब्बा थी, और जब से वो दूर हुई है मेरी ज़ात का धब्बा और भी नुमायाँ हो गया है, और मैं इस धब्बे की वजह मुँह से मुँह छुपाता फिर रहा हूँ। मैंने अपनी ज़ात पर खौल चढ़ा लिया है ताकि किसी को कुछ नज़र ना आए, और इसको छुपाने की कोशिश में अफ़ग़न अफ़रोज़ खुद कहाँ गुम हो गया है, ये मैं भी नहीं जानता। अफ़ग़न अफ़रोज़ मुर्दा सा दादी बी के सामने बैठा था। असर का वक्त हो रहा था और हलीमा बीबी अपने घर के सहन में इस परेशान और बेकल सी टहल रही थी। सारा ध्यान मायदा की तरफ लगा हुआ था। वो सुबह 9 बजे घर से निकली थी और इस वक्त शाम हो रही थी। न जाने इसे कहीं नौकरी मिली थी या नहीं। अपनी इज्जत महफूज रखने की खातिर न जाने कहाँ कहाँ धक्के खाती फिर रही होगी, ताकि वो शेख जमान के खौफ से बची रहे और इसकी गंदी और गलीज नज़रों से अपने आप को कुछ देर दूर रख सके। और इस कोशिश में वो सुबह से शाम कर चुकी थी और अभी तक घर नहीं आई थी। वो बरामदे में झाँक कर दीवार से लगी क्लॉक टाइम देख रही थी, जब दरवाज़े पर अचानक दस्तक हुई थी, लेकिन सामने मायदा के बजाय इनकी एक जानने वाली खड़ी थी। कैसी वो हलीमा अंदर नहीं आने दोगी? नसरीन आपा और हलीमा बीबी के आपस में काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी करीब से जानती थी और एक दूसरे के हालात भी जानती थी। ठीक हूँ, आओ अंदर आओ, सामने से हट गई। क्या बात है हलीमा, कुछ परेशान सी लगती हो? नसरीन आपा पहली नज़र में ही हलीमा बीबी के चेहरे की परेशानी भाप चुकी थी। तुम बैठो तो सही, मैं पानी लेकर आती हूँ। हलीमा बीबी ने चारपाई पर बिठाकर बावर्ची खाने की तरफ गई। अरे नहीं हलीमा, पानी-वानी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अफ़ग़न साहब के घर से अभी पानी पीकर ही आई हूँ। बेगम साहिबा का एक्सीडेंट हो गया था, जान तो बच गई लेकिन चलने-फिरने से माज़ूर हो गई हैं। आज अस्पताल से घर आई हैं, मैंने सोचा मैं भी जाकर इनकी आयात कराऊँ। जितना अरसा इनके घर काम किया, उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो मालिक हैं और मैं मुलाज़िम। उन्होंने हमेशा बराबरी का सलूक किया, अपने साथ बिठाकर खाना खिलाती थीं। आज इनकी तकलीफ़ देखी नहीं नहीं गई मुझसे, आँखों में आँसू आ गए। अल्लाह अपने बंदों के कैसे-कैसे इम्तिहान लेता है। ओह! उन्होंने गहरी साँस खींची थी। हलीमा बीबी जानती थी कि नसरीन ने अफ़ग़न साहब के घर पे काफ़ी अरसा काम किया है। अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों परेशान हो? इनकी तवज्जो दोबारा हलीमा बीबी की तरफ मबज़ूल हो चुकी थी। वो मैं दरअसल मायदा के लिए परेशान थी। वो सुबह से नौकरी की तलाश में निकली हुई है और अभी तक नहीं आई। उन्होंने बिलाख़िर बता ही दिया था। मायदा नौकरी की तलाश में? नसरीन आपा को अचंभा हुआ। वो सुबह से शाम तक घर में फ़ारिग बैठी रहती है। जब तक हिरा की शादी नहीं हुई थी तब तक तो ठीक थी, लेकिन अब अकेली और फ़ारिग रह रहकर उकता गई है। इसलिए मैंने कहा कि वो कहीं नौकरी कर ले। हलीमा बीबी सबको यही बावर करवा रही थी कि मायदा को जॉब करने के लिए उन्होंने खुद कहा है। मायदा के लिए जॉब के अलावा भी कुछ सोचा है या नहीं? नसरीन आपा ने इनके चेहरे को बगौर देखते हुए पूछा था। इस वक्त असल मसला इसकी जॉब है। इसे जॉब मिल जाए तो मैं मुतमिन हो जाऊंगी और सहूलत से इसके लिए रिश्ता तलाश कर सकूंगी, बल्कि इस काम में आपको भी मेरा साथ देना होगा। अरे ज़रूर साथ दूंगी, तुम इस काम में हाथ तो डालो। जवान बेटी को कब तक घर में बिठा के रखोगी? नसरीन आपा उन्हें काफ़ी अच्छा और मुखलिसाना मशवरा दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। इतने में खुले दरवाजे से मायदा भी अंदर चली आई थी। हलीमा बीबी ने चौंक कर इसे देखा। अरे तुम आ गई, इतनी देर क्यों लगा दी थी? अब तो दिल हिलने लगा था। हलीमा बीबी फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। मुझे घर से बाहर डर नहीं लगता अम्मी, मायदा अपनी चादर उतारते हुए बोली। फिर नसरीन आपा को देखकर उन्हें सलाम करते हुए इनकी सिमत चली थी। उन्होंने इसके सर पर हाथ फेरा था। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, खुश रहो। कहीं नौकरी मिली? वो नरमी से पूछ रही थी। अरे खाला, आजकल नौकरी का मिलना भी ऐसा हो गया जैसे किसी डिग्री का मिलना, जिसके लिए 4-4 साल मेहनत करनी पड़ती है। सुबह-शाम धक्के खाने पड़ते हैं, अपना खून जलाना पड़ता है, भूख और दूसरों की बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और मेरा तो अभी पहला दिन है। वो तल्ख़ी से सर झटकते हुए बोली थी। तुम परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। नसरीन आपा कुछ सोचते हुए इसका सर ठीक ठीक कर खड़ी हो गई। फिर दुआ सलाम के बाद वहाँ से रुखसत हो गई। पीछे वो दोनों माँ-बेटी सोच में गुम और परेशान बैठी थीं। ईशा, ईशा! अफ़ग़न अफ़रोज़ ड्राइंग रूम में खड़ा ईशा को आवाज़ें दे रहा था, लेकिन वो न जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। जी साहब जी, वो फ़ौरन भागी-भागी आई थी। कहाँ थी तुम? तुम्हें पता भी है कि मैं ऑफ़िस से लेट हो रहा हूँ और तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं लगाया। अफ़ग़न अपनी कलाई पर बाँधी घड़ी देखते हुए ईशा पर गुस्सा निकाल रहा था। सॉरी साहब जी, मैं बेगम साहिबा को नाश्ता करवा रही थी। मैंने सोचा आप अभी सो रही हैं, इसलिए नाश्ते लेट बनाऊँगी। उफ़! तुम भी कमाल की चीज़ हो। वो अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए ब्रीफ़केस उठा के बाहर निकल गया। अब यहाँ खड़े रह कर नाश्ता तैयार होने का इंतज़ार करना फ़ुज़ूल था। इसे ठीक 10 बजे एक मीटिंग करना थी, इसलिए तेज़-तेज़ कदम उठाता अपनी गाड़ी की सिमत बढ़ रहा था, जब नसरीन आपा की आवाज़ पर इसे फिर पड़ना पड़ा। सुनिए साहब जी। वो भी तेज़-तेज़ कदम उठाती हुई गाड़ी की दूसरी तरफ से घूमकर इसके सामने आ गई थी। जी कह के ये वो पैंट की जेब से गाड़ी की चाबी निकालते हुए इसकी सिमत मुतवज्जा हुआ था। वो दरअसल कल आप और हसाम साहब किसी लड़की के लिए बात कर रहे थे, जो बेगम साहिबा की देखभाल कर सके, इनका ख़्याल रखे और इन्हें अच्छी तरह सँभाल सके। नसरीन आपा ने जल्दी-जल्दी अपनी बात शुरू की। अच्छा, तो आपकी नज़र में कोई लड़की है? जी हाँ साहब जी, बहुत अच्छी लड़की है, जैसी आप चाहते हैं वैसी ही है, अपने काम से काम रखने वाली, समझदार और खामोश तबा है, नफ़ासत पसंद भी है, घर का हर काम जानती है। नसरीन आपा ने फ़ौरन मायदा की खूबियाँ बयान की। हूँ ठीक है, आप इस लड़की को कल सुबह 7 बजे भेज दीजिएगा, मैं इससे मिल लूँगा, मुनासिब लगी तो कल ही इसे काम पर रख लूँगा। ठीक है साहब, मेहरबानी आपकी। नसरीन आपा सर हिलाकर सामने से हट गईं और अफ़ग़न गाड़ी लेकर ले गया था, इसे ऑफ़िस पहुँचने की जल्दी थी।
शेख ज़मान नाश्ता करने के बाद अपनी दुकान पर जाने के लिए घर से निकला तो माहिदा भी उजलत से घर के काम निपटाकर जॉब की तलाश में निकलने के लिए तैयार होने लगी। माँ दुआ करना मुझे आज काम मिल जाए, क्यों जगह जगह धक्के खाना भी अच्छा नहीं लगता। अब वो अपने बाल को सुलझाकर कैचर में जकड़ते हुए बोली। दरवाजे में खड़ी हलीमा बीबी इसे ही देख रही थी। इंशाअल्लाह मिल जाएगा काम, इन्हें अपने रब पर पूरा भरोसा था, इसीलिए यकीन से बोली थी। इतने में बाहर का दरवाज़ा बजने लगा। ये सुबह सुबह कौन आ गया? बीबी है हलीमा बीबी हैरानगी से कहते हुए बाहर आई और दरवाज़ा खोल दिया। अरे नसरीन! इन्हें नसरीन को देखकर और भी हैरानगी और तज्जुब हुआ था। इतनी हैरान क्यों हो रही हो? क्या मैं नहीं आ सकती? अरे नहीं आपा, ये बात नहीं है। आप इतने इतने दिन इधर का चक्कर नहीं लगाती, इसलिए कह रही हूँ अभी, क्योंकि अभी कल शाम को ही तो आप आई थी और मैं सोच रही थी अब महीने 1.5 महीने बाद ही आपकी शक्ल देखना नसीब होगी। वो सामने से हटते हुए बोली और नसरीन आपा अंदर आ गईं। बस मायदा की वजह से खींची चली आई हूँ। कहाँ है वो? मायदा की वजह से क्या मतलब है आपका? खैर तो है हलीमा बीबी, अब तो ज़रा-ज़रा सी बात पर चौकनी-चौकन्नी हो जाती थी। जो मैंने पूछा है वो बताओ ना। जी वो अंदर तैयार हो रही है। अच्छा मायदा को बुलाकर उन्होंने कहा और बरामदे में पीछे तख्त पर बैठ गई थी। मायदा उन्होंने वहीं खड़े-खड़े आवाज़ दी थी। बाहर आओ, तुम्हारी खाला आई हैं, तुमसे कोई काम है शायद। जी अभी आई, वो अंदर से बोली। अस्सलाम वालेकुम खाला, खैरियत? सुबह-सुबह कैसे रास्ता भूल गई? मायदा ने भी आते ही हैरानी ज़ाहिर की थी। अरे पगली बैठ इधर, कल शाम से ही तुम्हारे काम के लिए सोच रही थी। सुबह होते ही तुम्हारे काम की तलाश में निकल खड़ी हुई। मेरे काम के लिए? हाँ, तुम्हारे काम के लिए। तुम बताओ कि तुम्हारे लिए काम करना ज़रूरी है या फिर मेरे लिए काम करना ज़रूरी है, चाहे काम कोई भी हो। मायदा दरमियान में ही बोल पड़ी थी। इसका लहजा और अंदाज़ बेहद संजीदा थे। अफ़ग़ान साहब की दादी बी की देखभाल करोगी? उन्होंने संजीदगी से सवाल किया। ये कैसा काम है? मायदा को अचंभा हुआ। अरे बेटा, ऐसे काम हज़ारों मजबूर और ज़रूरतमंद लड़कियाँ कर रही हैं। इतना बड़ा घर है इनका, बेगम साहिबा बिल्कुल अकेली होती हैं। अफ़ग़ान साहब सुबह ऑफ़िस के लिए निकलते हैं और शाम को वापस आते हैं, बल्कि यूँ कहो कि रात को वापस आते हैं। घर में चौकीदार, माली, ड्राइवर और एक मुलाज़िमा भी है, लेकिन वो बेचारी अकेली बेगम साहिबा को और घर को नहीं सँभाल सकती, इसलिए अफ़ग़ान साहब चाहते हैं कि कोई अच्छी और समझदार लड़की मिले तो वो इसे बेगम साहिबा की देखभाल और तीमारदारी पर मामूर कर दें। वो तो खुद बड़ी हशाश-बशाश और चाको-चौबंद ख़ातून थी, लेकिन इस नामुराद एक्सीडेंट ने इन्हें बिस्तर से लगा दिया है। बड़ी नफ़ासत पसंद तबीयत की हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि कोई सलीकामंद लड़की मिले और तनख्वाह भी अच्छी देंगी। तो क्या वो मुझे काम पर रख लेंगे? माहिदा ने जैसे यकीन चाहा। हाँ, क्यों नहीं रखेंगे भला, मैं अभी इन्हीं से बात करके आई हूँ। वो ऑफ़िस के लिए निकल रहे थे, मैंने तुम्हारे लिए बात की तो कहने लगे कि काम सुबह 7 बजे भेज कल सुबह 7 बजे भेज देना। तुम जाकर इनसे मिल लेना और साथ में ये भी बता देना कि मैंने तुम्हें भेजा है। उन्होंने मायदा को तफ़सील से समझाया। सच खाला, मुझे काम मिल जाएगा ना? मायदा ने इनके हाथ थाम लिए थे। इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि वो इस घर की चारदीवारी से चंद घंटों के लिए आज़ाद हो रही है। इसका मकसद यहाँ से निकलना था और ना इसे काम से तो कोई गर्ज़ था ही नहीं। शेख ज़मान की नज़रों से छुपना चाहती थी और यूँ भी इसकी तालीम ज़्यादा थी। इसे किसी बड़े दफ़्तर में मुश्किल से ही मुलाज़मत मिलती। हाँ, हाँ, मिल जाएगी पगली। उन्होंने इस बात में सर हिलाया था और मायदा बेसाख्ता इनके गले लग गई थी। वो सुबह फजर के वक़्त बेदार हुई, वज़ू करके नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई। वो नमाज़ पढ़ के दुआ माँग रही थी जब इस कमरे का दरवाज़ा हल्की सी आहट से खुला और भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मायदा ने अपनी बंद आँखें खोलते हुए एकदम गर्दन मोड़ी के अपने पीछे देखा तो पूरे जिस्म एक सुन की पूरे जिस्म में सरायत कर गई। इसके लब दुआ करना भूल गए। वो शैतान इसके करीब आ चुका था। तकलीफ़ के मारे इसके मुँह से एक शिद्दत किस्म की आग निकली थी। इसे जाए-नमाज़ से बालों से पकड़ कर उठाया और इसे खूनख्वार नज़रों से देखा। तुम क्या समझती हो कि इस तरह नौकरी करके और घर से बाहर रहकर तुम मुझसे बच जाओगी या फिर वो तुम्हारी माँ तुम्हें मुझसे बचा लेगी? बेवकूफ़ हो तुम दोनों माँ-बेटी। तुम्हारे लड़कपन से लेकर तुम्हारी जवानी तक तुम पे मेरा जितना भी खर्च हुआ है वो एक बार तुमसे वसूल करके ही रहूँगा। बस इंतज़ार करो कि ये होना कब है। और हाँ, अब अगर मैं अपनी माँ को कुछ बताया तो याद रखना, खड़े-खड़े से तलाक देकर घर से बाहर कर दूँगा। मैं अगर इसे बर्दाश्त कर रहा हूँ तो सिर्फ़ तुम्हारी वजह से। नौकरी करो बेशक, लेकिन मुझसे बचने के ख्वाब मत देखो, वरना आँखें निकाल दूँगा, समझी तुम? इसने एक झटके से इसके बाल पकड़े। वो बाल छोड़े। वो काफ़ी गैर मुतवाज़न कदमों पे खड़ी थी। अ जाए-नमाज़ पर ऐन सजदे की जगह जा गिरी थी। इसका सर ज़ोर से ज़मीन से टकराया और वो चकरा गई। इसने अपने चकराते हुए सर को थामा। वो वहीं जाए-नमाज़ पर बैठी अपने घुटनों में मुँह दिए फूट-फूट कर रो पड़ी थी। ऐ अल्लाह, अगर मुझसे कोई गुनाह हो गया है तो मुझे माफ़ फ़रमा दे। मुझे इस शैतान से बचा ले। ऐ अल्लाह, मेरी इज़्ज़त और नामूस की हिफाज़त तेरे ज़िम्मे है। मेरा दामन दाग से बचाना। बेशक तू अपने बंदों को इनकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आज़माता। वो घुटनों में मुँह छुपाए काफ़ी बुलंद आवाज़ में रोते हुए अपने रब के आगे फ़रियाद कर रही थी और शेख ज़मान जैसा शैतान ये नहीं जानता था कि ये वक़्त कबूलियत का वक़्त होता है। क्या बात है, मायदा तुम रोती रही हो?
हलीमा बीबी ने इसकी सूजी हुई मुतवर्रम आँखें देखते ही भाँप गईं कि वो रोई है। नहीं, इसने सख्ती से इनकार किया। तो फिर तुम्हारी आँखें और चेहरा, आप मुझे लेट ना करें, जल्दी से नाश्ता दें, मुझे निकलना भी है। वो टाइम देखते हुए उजलत का मुज़ाहरा करते हुए बोली थी, अकेली चली जाओगी अफ़ग़ान साहब के घर? ज़ाहिर है काम मैंने अकेले करना है तो मैंने अकेले ही जाना है। वो लापरवाही से कहते हुए इनकी बात टाल गई थी। इसने जल्दी-जल्दी 2-4 लुक़मे ज़हर मार के लिए और हलीमा बीबी को अल्लाह हाफ़िज़ कहते हुए बाहर निकल आई। शेख ज़मान इसको सूली पर लटकाकर मज़े से सो रहा था। मायदा इस घर के वसी और अज़ीज़ अहाते को हैरान और मरऊब नज़रों से देखती हुई गेट के करीब आई थी और बेल बजा दी। अगले 5 सेकंड में अंदर से चौकीदार नमूदार हो गया। जी फरमाइए, किससे मिलना है? जी, वो अफ़ग़न अफ़रोज़ साहब से मिलना है। मायदा ने अपना एतमाद बहाल करने की कोशिश की। किस सिलसिले में मिलना है आपने? चौकीदार पूरे मालूमात चाह रहा था और वो दरअसल उन्हें बेगम साहिबा के लिए किसी अच्छा में समझ गया। आप नसरीन आपा की तरफ से आई हैं? चौकीदार को भी शायद पहले से ही पता था। जी, मुझे नसरीन खाला ने ही भेजा है। इसने इस बात में सर हिलाया। आए अंदर आ जाएँ, साहब भी आपका इंतज़ार कर रहे थे। चौकीदार इसे अंदर आने के लिए रास्ता देते हुए खुद पीछे हट गया। वो अंदर आई और चौकीदार की मैयत में चलती हुई अंदर पहुँची। इस आदमी को देखती रही इस आदमी को देखती रही, तौलिए से बाल रगड़ता हुआ इनकी सिमत पलटा था। साहब जी, चौकीदार ने काफ़ी धीमे और मद्दब लहजे में पुकारा था। अफ़ग़न ने तौलिए वाला हाथ रोकते हुए चौकीदार की सिम देखा, लेकिन इसके साथ एक अजनबी लड़की को देखकर चौंक गया। साहब, नसरीन आपा ने बेगम साहिबा के लिए भेजा है इन्हें, चौकीदार ने तारुफ़ कराया। ओह अच्छा, डाइनिंग रूम में बिठाओ इन्हें, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। अफ़ग़न का लबो लहजा नया नपा-तुला सा था। इसने टेबल पर रखा जूस का गिलास उठा के मुँह से लगा लिया। मायदा अफ़ग़न अफ़रोज़ को देखती हुई चौकीदार के साथ वापस पलट गई। वो इसे डाइनिंग रूम में बिठाकर चला गया। वो डाइनिंग रूम का जायज़ा ले रही थी। अफ़ग़न अफ़रोज़ ने डाइनिंग रूम में कदम रखते हुए गला खनकार के इसे मुतवज्जा किया तो वो एकदम गड़बड़ाकर सोफ़े से उठ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम। इसे अचानक सलाम करने का ख़्याल आया था। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। अफ़ग़न ने इसे दोबारा बैठने का इशारा किया और खुद भी इसके मुकाबिल वाले सोफ़े पर बैठ गया। क्या नाम है आपका? माइदा अमीन। आपको पता है आपको यहाँ किस काम के लिए भेजा गया है? जी, बड़ी बेगम साहिबा की देखभाल के लिए। इसने आहिस्ती से सर हिलाते हुए जवाब दिया। तो क्या आप दादी बी की देखभाल कर सकेंगी? वो अपने मतलब की बात दो टोक सवाल पूछ रहा था। मतलब के दो टोक सवाल पूछ रहा था। जी, क्यों नहीं, इसीलिए तो आई हूँ। मायदा का रफ्ता-रफ्ता एतमाद बहाल हो रहा था। आप जानती हैं किसी की देखभाल की ज़िम्मेदारी उठाना आसान काम नहीं है। किसी को अपना समझकर ये ज़िम्मेदारी उठा लें तो ज़रा भी मुश्किल नहीं लगती, लेकिन अगर महज़ काम समझकर ये ज़िम्मेदारी निभाई जाए तो वो वाक़ई में बहुत मुश्किल लगती है। मायदा ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया था। तो आप क्या समझकर ये ज़िम्मेदारी निभाएँगी? अफ़ग़न ने मायदा के चेहरे की सिम देखते हुए पूछा था। नज़रें काफ़ी गहरी थीं। मैं इनको अपना समझकर ज़िम्मेदारी निभाऊँगी। क्यों? आपका इनसे के साथ क्या रिलेशन है कि आप इन्हें अपना समझ के ज़िम्मेदारी निभाएँगी? अफ़ग़न का लहजा और अंदाज़ तीखा हो गया था। देखिए सर, मेरा इंसानियत का रिश्ता है। आप मुझे तनख़्वाह के नाम पर कुछ भी ना दें। मैं तब भी इनकी देखभाल के लिए आ सकती हूँ, क्योंकि वो इस वक़्त बेबस और माज़ूरी के दौर से गुज़र रही हैं। उन्हें किसी इंसान के सहारे की ज़रूरत है और मुझे खुशी है कि इनकी खिदमत के लिए अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हैरत हो रही है आपकी बात पर। अफ़ग़न ने अपनी हैरत का बरमला इज़हार किया था। हैरत किस बात पर है आपको? आपके इंसानियत भरे लेक्चर पे, क्योंकि औरत अपनी मफ़ाद के बगैर कभी कोई काम नहीं करती। अफ़ग़न का लहजा सर्द हो गया था। आप ये कैसे कह सकते हैं? अपने मफ़ाद के बगैर तो कोई भी इंसान काम नहीं करता। सिर्फ़ औरत पर ही इल्ज़ाम क्यों रख रहे हैं आप? क्योंकि औरत को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अफ़ग़न अफ़रोज़ एकदम अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए चबाकर बोला था। और मर्द कितना मफ़ाद परस्त है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मायदा भी अपने अंदर की तलख़ी छुपा नहीं पाई थी। इसका जी चाहा एक पल में अफ़ग़न अफ़रोज़ पर मर्द की मर्दानगी और करतूतों के किस्से वाज़िया करके रख दे, लेकिन वो काम के लिए आई थी, इसलिए चुप हो रही थी। और वो ख़ामोशी तो दूसरी तरफ भी छाई हुई थी। वो लब भीजे न जाने क्या सोच रहा था। देखिए सर, आपने जो कहा है कह दीजिए, वरना मुझे इजाज़त दें। वो अपना बैग उठाती हुई उठ खड़ी हुई थी, लेकिन अफ़ग़न अफ़रोज़ अब इतना भी मुश्तिल नहीं हुआ था कि इसे काम से ही निकाल देता। ठहरिए मिस मायदा अमीन। इसने मायदा के बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया था और खुद सोफ़े से उठ खड़ा हुआ। वो फ़ैसला कर चुका था। आप आज से ही अपना काम जॉइन कर सकती हैं, और हाँ, आपने तनख़्वाह कितनी लेनी है ये भी बता दीजिएगा। कहकर वहाँ रुका नहीं, बल्कि तेज़-तेज़ कदमों से चलता हुआ बाहर निकल गया। मायदा को अफ़ग़न अफ़रोज़ की अजीब-सी शख़्सियत पे हैरत हो रही थी। इसने तो नसरीन खाला से बहुत तारीफ़ें सुनी थी इसकी, और वो तो पहली मुलाकात में ही काट खाने को दौड़ रहा था। इसका अजीब और ग़रीब रवैया इसे हैरत में डाल रहा था। दादी बी और माहिदा के अंदर अंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई कि वो दोनों ही अपने-अपने गम भूल गईं और एक-दूसरे को समझने की कोशिश में मगन हो गईं। दादी बी को माहिदा की सूरत में एक साथी और गमख्वार मिल गया था। वो दिन भर इनके साथ रहती, इनकी बातें सुनते हुए काम निपटाती रहती थी, और शाम ढले जब वो वापसी के लिए रुखसत होती तो वो दोनों ही उदास हो जाती थीं। माहिदा का घर वापस जाने को दिल ही नहीं चाहता था।
इसे पता था कि वो वापस जाएगी तो शेख ज़मान की गलीज़ नज़रों से सामना होगा, इसलिए वो अक्सर अपने टाइम से भी लेट हो जाती थी। आज भी ऐसा ही हुआ था। मायदा का 6 बजे ऑफ हो चुका था, लेकिन वो फिर भी जाने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही थी। दादी बी को वज़ू करवा के वो खुद वज़ू करने चली गई। फिर वापस आकर इसने भी नमाज़ की नीयत बाँध ली थी। अस्सलाम वालेकुम दादी बी। अफ़ग़ान दादी बी के बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो दादी बी के बेड के करीब नज़र पड़ी तो इसके कदम और अल्फाज़ थम गए थे। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। दादी भी सलाम फेर चुकी थी और फ़ौरन बोल पड़ी थी, कैसी हैं आप? वो धीमे और भारी कदमों से चलता हुआ इनके करीब आ गया था। क्या सोच रहे हो? दादी बी ने हैरत से कहते हुए इसे मुतवज्जो किया था और अफ़ग़ान बुरी तरह चौंक उठा। मायदा सलाम फेर चुकी थी और अब दोनों हाथ उठाकर दुआ मांग रही थी। कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मिस माहिदा अमीन अपने वक्त से आधा घंटा लेट हो चुकी हैं। इन्होंने घर नहीं जाना। अफ़ग़ान को भी इसके लेट होने का एहसास हो चुका था, इसीलिए घड़ी से घड़ी की सिम देखा था। अरे बेटा, माहिदा तो अक्सर ही लेट हो जाती है। मगरिब की नमाज मेरे साथ पढ़ के घर वापस जाती है। इसे अचंभा हुआ था। ठीक है दादी भी, मैं भी अब चलती हूँ। वो जाए नमाज़ समेटकर चादर ओढ़ती हुई इनके पास आ गई थी। अरे बेटा, थोड़ी देर और ठहर जाती, हमारे साथ खाना खा लेती। नहीं दादी भी, खाना मैं अम्मा के साथ जाकर खाऊंगी, वो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। इसने इनकार कर दिया था। ड्राइवर से कहो वो तुम्हें छोड़ आता है, शाम काफ़ी गहरी हो चुकी है। नहीं दादी भी, मैं चली जाऊँगी, मेहरबानी आपकी। मायदा ने इनके करीब बैठे अफ़ग़ान को देखते हुए इनकार कर दिया था। वो चुपचाप इन दोनों की गुफ्तगू और अपनायत भरे लहजे सुन रहा था। नहीं बेटा, शहर के हालात तो वैसे ही बहुत ख़राब हैं। जवान लड़कियों का इस वक्त अकेले बाहर निकलना ठीक नहीं है। अफ़ग़ान उठो बेटा, रशीद से कहो मायदा को इसके घर ड्रॉप कराए। उन्होंने अफ़ग़ान को मुखातिब करते हुए कहा। रशीद घर पर नहीं है। अफ़ग़ान ने लठमार सा जवाब दिया। क्यों, कहाँ है? ईशा को लेकर डॉक्टर के पास गया हुआ है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अफ़ग़ान को अब दादी बी के सवाल जवाब पे उलझन हो रही थी। देखो बेटा, वो अकेली इस वक्त कैसे जाए? जवान जहान लड़की है, कोई हादसा ना हो जाए। ऐसा करो, तुम इसे ड्रॉप कर दो, बस 5 मिनट का रास्ता है, ज़रा ज़हमत कर लो। दादी बी ने ड्राइवर का काम अफ़ग़ान के कंधों पर डाल दिया, लेकिन वो इतनी मुरव्वत निभाने वाला नहीं था। आई एम सॉरी, ये काम मेरा नहीं है, वो कहकर वहाँ से उठ गया था और दादी बी और मायदा देखती रह गई। दादी बी को ऐसी बेमुरव्वती की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। मायदा को पता था, मगर दादी बी को अफ़ग़ान अफरोज़ के रवैये पर शर्मिंदी हुई थी, इसलिए वो इन्हें शर्मिंदगी के एहसास से निकालने के लिए काफ़ी नॉर्मल और लापरवाह से अंदाज में मुखातिब हुई थी। अफ़ग़ान साहब ठीक तो कह रहे हैं। दादी भी, ड्राइवर होता तो और बात थी। अब वो कहाँ मुझे ड्रॉप करने के लिए जाएँ? इन्हें तंग करने से बेहतर है मैं खुद ही चली जाऊँ। वो भी तो ऑफ़िस से थके हुए आए हैं। लेकिन माहिदा, इसने डोंट वरी दादी भी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो मुझे या आपको बुरा लगे। थकन के बायस बंदे का मिजाज ऐसा हो ही जाता है। मैं आसानी से घर चली जाऊँगी, आप फ़िक्र ना करें, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ कहते उन्हें समझा कर तसल्ली देती हुई बाहर निकल आई थी। लेकिन बाहर आकर इसके कदम सुस्त पड़ गए थे और इसके कदमों की सुस्ती टेरेस पर खड़े अफ़ग़ान अफरोज़ से छुपी हुई नहीं रह सकी थी। यूँ लग रहा था जैसे वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से जा रही थी। इसने 2 बार ठहर कर पलटकर इस घर को देखा और बड़ी हसरत भरी नज़रों से देखा, फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा अबूर कर गई। अफ़ग़ान अफरोज़ को इसका अंदाज़ समझ भी में नहीं आया था, वो उलझ सा गया था। अंधेरे के बावजूद सड़क इलेक्ट्रिकल पोल और गाड़ियों की रोशनियों में जगमगा रही थी। माहिदा पैदल चलती हुई रिहायशी इलाके से निकलकर फुटपाथ पर आ गई थी। इसके कदम अब भी सुस्त रवि से उठ रहे थे। इसका दिल चाहता था वो दिन रात घर से बाहर रहे, ताकि एक पल के लिए भी शेख ज़मान की नज़रों का सामना ना हो, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी ऐसा होता नहीं था। वो शैतान तो जैसे दरवाजे पे ही नज़रें जमाए बैठा होता था। और अपने दरमियान में अब मायदा अपने ध्यान में चली जा रही थी जब इसे लगा जैसे कि शेख ज़मान ने इसे पुकारा है। इसने अपना वहम समझकर सर झटक दिया था। मायदा, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ही लेने के लिए आया हूँ। दोबारा शेख ज़मान की आवाज़ सुनाई दी तो इसने एकदम करंट खाकर देखा था। शेख ज़मान पुराने मॉडल की अपनी पटरीचरी गाड़ी में बैठा इसे मुखातिब करते हुए बैठने का इशारा कर रहा था, लेकिन ये कैसे हो सकता था कि मायदा इसके साथ अकेली गाड़ी में बैठ जाती? इसे तो सोचकर ही झुरझुरी सी आ गई थी। मैं चली जाऊँगी, मुझे पता है चली जाओगी, लेकिन मेरे साथ जाने में क्या हर्ज है? मैंने कहा ना चली जाऊँगी खुद, मायदा चबाकर बोली थी। पर बहुत पढ़ निकल आए हैं तुम दोनों, माँ बेटी के काट के रख दूँगा। आराम से गाड़ी में बैठो, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया। तुम्हारी माँ ने भेजा है मुझे। शेख ज़मान गाड़ी से निकल आया और मायदा घबरा गई कि आस-पास के लोग क्या सोचेंगे, यहाँ कोई तमाशा ना बन जाए। आपको मेरी माँ भेजी या मेरा बाप, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, इसने नफ़रत से कहते हुए मुँह फेर लिया था। तुम्हारा तो बाप भी जाएगा, कैसे नहीं जाती तुम? शेख ज़मान ने गुस्से से मुश्तिल होते हुए मायदा की कलाई दबोचकर इसे गाड़ी की सिमत खींच लिया था और फिर मायदा की बर्दाश्त दबा दी गई। इसने शेख ज़मान के लम्स पर पागल होते हुए एक जन्नाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा और इससे पहले कि शेख ज़मान ग़ैज़ो गज़ब में आकर जवाबन कोई कार्रवाई करता, मायदा इसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाकर एकदम भाग खड़ी हुई और ऐसा अंधाधुंध भागी कि इसने पीछे पलट कर देखने की ज़हमत नहीं की। और यूँ भागते भागते इसे होश इस वक्त आया जब वो अपने घर के सामने पहुँच गई थी। इसने दरवाज़ा धड़ाधड़ पीट डाला। माँ, दरवाज़ा खोलो, इसकी आवाज़ हाँफ रही थी और साँस फूले हुई थी। अम्मा, इसने तो दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से धड़धड़ाया।
اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا ہے بھئی؟ حلیمہ بی بی نے دروازہ کھولتے ہوئے دہل کر کہا تھا اور مائدہ نے اندر داخل ہو کر اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا تھا۔ ارے کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ حلیمہ بی بی بھی گھبرا گئی تھی۔ اماں وہ شیخ زمان، وہ میں نے اسے مائدہ کی سانس پھولی ہونے کی وجہ سے بات بھی بے ربط ہی تھی۔ کیا ہوا ہے شیخ صاحب کو؟ حلیمہ بی بی الجھ گئی۔ اماں وہ مجھے گاڑی میں مائدہ وہیں دروازے کے قریب ہی ڈہ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حلیمہ بی بی نے گھبراہٹ کے مارے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ وہ بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ مائدہ بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ میرا دل گھبرا رہا ہے اماں، میں نے انہیں تھپڑ مار دیا ہے اور وہ زبردستی مجھے گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ میں نے انکار کر دیا تو میری کلائی پکڑ کر کھینچنے لگے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں، اس لیے غصے میں وہ کہتے ہوئے رو پڑی اور حلیمہ بی بی ساکت بیٹھی رہ گئی۔ ان کا دماغ سن ہو چکا تھا، انہیں اپنی زندگی اور اپنی بیٹی کی عزت خطرے میں نظر آ رہی تھی اور بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لگتا ہے تم ساری رات سوئی نہیں ہو یا پھر روتی رہی ہو۔ وہ دادی بی کو اخبار سنانے کے لیے بیٹھی تو دادی بی نے اچانک سوال داغ دیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے دادی بی، آپ نیوز سنیں۔ مائدہ کی آواز کافی بوجھل ہو رہی تھی۔ نہیں، مجھے وہ نیوز سناؤ جو تمہارا چہرہ اور تمہاری آنکھیں سنا رہی ہیں۔ دادی بی اپنی بات پر جم چکی تھی۔ میرے پاس کچھ اچھا نہیں ہے سنانے کے لیے۔ مائدہ کا سر جھک گیا تھا۔ اچھا تو اس خبر میں بھی نہیں ہے جو تم مجھے سنانے کے لیے بیٹھی ہو؟ ہاں تو یہی سمجھ لیں کہ میری نیوز آپ کو کسی سرخی سے ہی مل جائے گی۔ روز کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ کسی لڑکی کے ساتھ بہنوئی زیادتی کر ڈالتا ہے، کسی لڑکی پہ سوتیلے باپ کی بری نظر ہوتی ہے، کوئی اجتماعی زیادتی کا شکار ہو جاتی ہے، کسی کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور کسی کو۔ مائدہ دادی بھی اسے درمیان میں ہی روک چکی تھی۔ وہ بلاکی ذہین تھی، انہیں نیوز سمجھ آ چکی تھی۔ دادی بھی سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ مائدہ ان کے قدموں میں بیٹھی تھی اور ان کے گھٹنے پر سر رکھ کے تڑپ گئی تھی۔ میرے اماں ابا نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، اس لیے خاندان میں کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ دونوں اکیلے رہتے تھے، لیکن میری پیدائش کے 8 سال بعد ابا کی وفات ہو گئی اور اماں اکیلی رہ گئیں۔ 2-3 سال وہ ادھر ادھر کرائے کے مکانوں میں دھکے کھاتی رہیں، لیکن ایک بیٹی کے ساتھ وہ کب تک خوار ہو سکتی تھیں؟ انہیں کسی کے سہارے اور سر پر چھت کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی بیٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے شیخ زمان سے شادی کر لی۔ شیخ زمان کی اپنی بھی 2 بیٹیاں تھیں جنہیں اماں نے ہمیشہ مجھ سے بھی زیادہ پیار دیا۔ جب تک وہ رہیں سب ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی ان کی شادیاں ہوئیں شیخ زمان کی نظریں غلیظ تر ہوتی گئی۔ راتوں کو اماں دوا کھا کر سو رہی ہوتی تو شیخ زمان میرے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوششوں میں لگ جاتا۔ اماں گھر سے باہر نکلتی تو وہ تنہائی ڈھونڈنے لگ جاتا اور میں اپنی عزت چھپا چھپا کر ہلکان ہو جاتی ہوں۔ اس لیے میں نے نوکری کی تاکہ مجھے سارا دن گھر پر نہ رہنا پڑے۔ لیکن کل شام کو جب میں واپس جا رہی تھی تو وہ اچانک کہیں سے آ گیا اور مجھے ساتھ چلنے کا کہنے لگا اور میں نے اس کی زبردستی پہ اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا، جس پر مجھے توقع امید تھی کہ وہ مجھے اور اماں کو گھر آ کر خوب تنگ کرے گا، مارے گا، ہنگامہ اٹھائے گا، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا۔ وہ کل رات سے خاموش ہے۔ پتہ نہیں اب اس کی خاموشی کے پیچھے کیا راز ہے، کیا کرے گا وہ، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مائدہ روتے ہوئے سب کچھ بتا گئی تھی اور دادی بھی گمسم ہو کر رہ گئی۔ ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ مائدہ کے آنسو سے ان کا گھٹنا بھیگ چکا تھا۔ مائدہ بی بی عشاء کی آواز پر سوپ بناتے مائدہ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ ہوں کہو، اس نے دوپٹے سے ہاتھ پوچھتے ہوئے کہا۔ صاحب نے آپ کو اپنے کمرے میں بلایا ہے، عشاء نے پیغام پہنچایا۔ صاحب نے مائدہ چند ثانیے کے لیے ٹھٹک ہی گئی، پھر اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھالتی افغان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ پہلی بار اوپر اس کے کمرے کی طرف آئی تھی، اس لیے جھجک بھی ہو رہی تھی، لیکن کچھ دیر کے لیے شرم اور جھجک کو بالا تر رکھ کر اس نے دروازے پر ایک اعتماد بھری دستک دیے ڈالی۔ یس کم ان۔ اندر سے سنائی دینے والی آواز گمبھیر اور بے انتہا سرد تھی۔ مائدہ کو اس آواز کا سرد پن اپنے جسم و جاں میں سرایت کرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنی تمام تر ہمتیں جمع کرتی دروازہ دھکیل کر اندر داخل اندر چلی آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں زخمی شیر کی مانند ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں سلگتا سگریٹ اس کے غصے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ مائدہ نے سلام کیا، لیکن وہاں سے سلام کا جواب نہ آیا۔ بیٹھیے مس مائدہ امین، اس نے ضبط کرتے ہوئے کافی تنزیہ سے انداز میں صوفے کی سمت اشارہ کیا تھا۔ تھینک یو سر۔ وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے آپ کو یہاں کس لیے بلایا ہے۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے سگریٹ کو ایشٹرے میں مسل چکا تھا۔ جی پتہ ہے مجھے، اس نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ میں آپ کی ساری چال بازی سمجھتا ہوں۔ افغان کے لب و لہجے میں نفرت اور حقارت تھی۔ مائدہ نے یک دم چونک کر اسے دیکھا تھا۔ چال بازی؟ ہاں چال بازی، جو آپ نے دادی بی کے سامنے کھیلی ہے، خود کو مظلوم اور غریب ظاہر کرتے ہوئے۔ سر میں اگر کوئی چال بازی کر ہی رہی ہوں تو دعا کرتی ہوں میرا رب مجھے ابھی ابھی اس کی سزا دے دے۔ اور دادی بی کے سامنے میں نے صرف اپنی زندگی کی کتاب کھول کے رکھی ہے۔ اب اس کتاب کو پڑھ کے ان کے دل میں کیا خیال آیا ہے اور کیوں آیا ہے، اس کے بارے میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کو اگر یہ سب مناسب نہیں تو انکار کر دیجیے۔ آپ کسی کے پابند یا محتاج تو نہیں ہے نا؟ محتاج تو مجھ جیسے اور دادی بی جیسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے آسرے اور ہمارے آسرے پر جی رہے ہوتے ہیں۔ مائدہ کا لہجہ بے بسی لیے ہوئے تھا۔
मिस मायदा अमीन, मैं इमोशनल ब्लैकमेल होने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे ज़िंदगी में सिर्फ एक औरत ने ब्लैकमेल किया है, इसके बाद दोबारा नहीं हो सकता। वो एकदम घबरा कर बोला था। तो आप क्यों हो रही हैं इमोशनल? आपने जो भी काम करना है ठंडे दिलो दिमाग से करें। मैं ठंडे दिलो दिमाग से कैसे कर सकता हूँ सब, जबकि दादी भी आपके हक में बोल रही हैं। इनकी बात टालना कौन सा मुश्किल है आपके लिए? मायदा के इत्मीनान से कहने पर वो और भी मुश्किल हो गया। इसने सोफे के हत्थे पर हाथ जमाकर मायदा की सिम झुकते हुए इसे खूनखार नजरों से देखा था। मिस मायदा अमीन, मुझसे शादी करने के बाद अपने औरत होने का हर रोज़ तावान भरोगी तुम, हर रोज़ अज़ियत दूँगा मैं, हर रोज़ तड़पोगी, मुझसे भागने की कोशिश करोगी और मैं तुम्हें भागने नहीं दूँगा। वो एक-एक लफ्ज़ चबा-चबा कर अदा कर रहा था और मायदा के चेहरे पर एक बेबसी सी मुस्कुराहट भरकर मासूम हुई थी। मुझे मंज़ूर है सर, इसने सब कुछ सीने पर बर्दाश्त करने के लिए रज़ामंदी दे दी थी। और अफ़गान अफ़रोज़ इसके इस फैसले पर जैसे एकदम चुप सा हो गया। मायदा के सुनहरी रंगत वाले चेहरे को बगौर देखते हुए उसने गहरी सांस खींची और सीधा होते हुए पीछे हट गया। ठीक है, आप निकाह की तैयारी करें। अफ़ग़न ने भी अपना फ़ैसला सुना दिया था। जब तक दादी भी ठीक थी, अफ़ग़न अपनी मनमानी करता था, लेकिन जब से वो एक्सीडेंट के बाद मासूरी का शिकार हुई थी, अफ़ग़न ने इन्हें परेशान करना छोड़ दिया था। वो इनकी बात नहीं टालता था और दादी भी ने इसी सादतमंदी का फ़ायदा उठा लिया। उन्होंने अफ़ग़न के लिए मायदा का इंतखाब कर लिया। अफ़ग़न राज़ी नहीं था, मगर मायदा जिसे एक घर, एक साहिबान, एक पनाह मिल रही थी, वो इनकार कैसे करती, वो कैसे पीछे हटती। अफ़ग़न अफ़रोज़ जैसा भी था, इसे कबूल था, क्योंकि वो इसे अपना नाम दे रहा था, शेख ज़मान से पनाह दे रहा था, चाहे गुस्से में ही सही, कम से कम अपना तो रहा था। थैंक यू, वो कहकर बाहर निकल आई थी। मायदा क्या कहा अफ़ग़न ने? दादी भी को आयशा ने बता दिया था कि मायदा अफ़ग़न साहब के कमरे में गई है, इसलिए वो इसके इंतज़ार में थी। कहते हैं निकाह की तैयारी करें। मायदा बेहद आहिस्तगी से बोली थी। अरे सच! खुशी के मारे इनका चेहरा खिल उठा और मायदा इनके करीब बैठते हुए इनके कंधे से लग गई थी। हलीमा बीबी ने फ़राह और हेरा दोनों को फ़ोन करके बुला लिया था। इनके शौहर और बच्चे भी साथ आए थे और सभी मायदा के निकाह पे बहुत खुश थे और अपनी इस खुशी का इज़हार भी कर रहे थे। अलबत्ता शेख ज़मान सबके दरमियान मौजूद होते हुए भी चुप और गर्दन झुकाए बैठा था। शेख साहब, आप क्यों चुप हैं? आपकी बेटी रुखसत हो रही है, कुछ तो बोलिए। हिरा का शौहर वसीम अहमद इनके कंधे पे हाथ रखते हुए बड़ी अपनायत और लगावट से बोला, जिस पर शेख ज़मान ने इसे महज़ एक नज़र देखा और चेहरा दूसरी सिमत फेर लिया। आपकी तबीयत ख़राब है तो आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। और इन्हें बोलने पर गुस्सा रहा था। मेरी तबीयत ठीक है, तुम लोग जो कर रहे हो करते रहो। शेख ज़मान ने वसीम अहमद का हाथ अपने कंधे से झटक दिया। अरे शेख साहब, आप तो गुस्सा ही कर गए। हालांकि आप जानते हैं कि आप गुस्सा करेंगे तो आपकी बेटियों की ज़िंदगी पर असर पड़ेगा और एक नहीं दो बेटियों की ज़िंदगी ख़राब होगी। तलाक का टीका सजाकर घर आ गई तो क्या जवाब देंगी लोगों को? वसीम अहमद गुस्से से चबाकर बोले थे और शेख ज़मान एक बार फिर चुप हो गए थे। दुल्हन बनी मायदा अमीन को तो यह खबर ही नहीं थी कि वसीम अहमद इसके लिए नहीं रिश्ता साबित हुआ था। इस रोज़ जब वो शेख ज़मान को थप्पड़ मार के भागी थी, वसीम अहमद भी वहीं खड़ा ये सब तमाशा देख रहा था। शेख ज़मान ने मायदा के पीछे भागने की और इसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इसे वसीम अहमद ने कमीज़ के कॉलर से पकड़ के दबोच लिया था और सारी सूरत-ए-हाल समझ चुका था और इसे ये भी अंदाज़ा था कि मायदा को ये थप्पड़ महँगा भी पड़ सकता है। इसलिए इसने शेख ज़मान की शैतानियत के सामने इसकी बेटी को ला खड़ा किया। सौतेली बेटी को बचाने के लिए इसकी सगी बेटी की धमकी दी कि अगर इसने दोबारा मायदा पर बुरी नज़र डाली या इसे तंग किया, हलीमा बीबी को कुछ कहा, तो वो हिरा को तलाक देकर घर भेज भेज सकता है। और जब बाप के करतूत सामने आएंगे तो फराह के ससुराल वाले भी इसे निकाल बाहर करेंगे। और यही वजह थी कि इस रोज़ से लेकर आज तक शेख ज़मान खामोशी की बुक्कल मारे फिर रहा था। कब अफ़ग़न का रिश्ता आया, कब रिश्ता तय हुआ और कब शादी का दिन सर पर आन पहुंचा, इसे इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं हुई थी और ना ही इसने किसी काम में मुदाखलत की थी। अल्लाह का एहसान था कि सब कुछ बखैरियत अंजाम पा गया था, जिस पर हलीमा बीबी और माहिदा भी अंदर ही अंदर हैरान और बेयकीन हो रही थी, मगर साथ साथ अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रही थी जिसने इन्हें सरखुरू कर दिया था और वो बाइज्जत तरीके से अपने घर को रुखसत हो गई थी। वसीम अहमद की धमकी कुछ कम नहीं थी। शेख ज़मान अपनी हवस और नफ्स के आग में अपनी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता था, इसलिए बेबस होकर हाथ मलता रह गया। वो मुसलसल 3 घंटों से दुल्हन बनी एक ही अंदाज में बैठ इसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो इसके इंतज़ार से बेखबर और लापरवाह न जाने कहाँ गुम था कि अपने बेडरूम में आने का भी होश नहीं था। और मायदा भी जैसे तय किए बैठी थी कि इसके देखे बिना वो ना तो चेंज करेगी और ना ही सोएगी। सुबह के 4 बज चुके थे जब वो नशे में गर्क बोझल कदम उठाता हुआ बेडरूम में दाखिल हुआ था और इसके बेतरब कदमों मायदा की धड़कनें भी बेरब्त हो गई थी। इसके तने असाब पर पंजे जमाती नींद एकदम से हवा हो गई थी। वो जो ज़रा सा तकिया का सहारा लिए बैठी थी, इसे देखकर फ़ौरन सीधी हो बैठी थी। अफ़ग़न अफ़रोज़ भी सीधा बेड के सिमत आया और अपना मोबाइल फ़ोन जेब से निकाल कर बेड पर उछालते हुए खुद भी वहीं ढेर हो गया था। मायदा बेड के वसत में बैठी हुई और वो बेड पर इसके सामने आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। इसने तो मायदा की एक नज़र देखने की भी ज़हमत नहीं की थी, बल्कि आंखें बंद किए जैसे वहीं सोने की कोशिश कर रहा था।
आप यहाँ अगर सही से सो जाएँ, मैं उठ जाती हूँ। मायदा ने इसे डरते-डरते और धड़कते दिल से मुखातिब किया था। उठने की क्या ज़रूरत है? बैठी रहो, रात अभी ख़त्म नहीं हुई। अफ़ग़न अपने बालों में हाथ फँसाते हुए उठ बैठा। आप थके हुए लग रहे हैं, सो जाएँ। मायदा को इसके मुँह और कपड़ों से उठने वाली बू से अंदाज़ा हो गया था कि वो ड्रिंक करके आया है। तुम तो नहीं थकी हाँ? अफ़ग़न ने अपने हाथ से इसके गाल को थपथपाते हुए कहा था और मायदा का चेहरा सुर्ख़ पड़ गया था। अफ़ग़न आप ये क्या मत नाम लो मेरा, बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। वो भी इसी तरह नाम लेती थी मेरा। शादी की पहली रात भी इसने इसी तरह पुकारा था। अपनी अपनी मोहब्बतों के झूठे यकीन दिलाए थे इसने। झूठी थी वो, और तुम भी झूठी ही हो इसी की तरह। धोखेबाज, बेवफा और मर्द की दौलत पर ईमान हो। औरत को सिर्फ दौलत ही नज़र आती है, चाहे वो अफरोज़ की हो या जमाल पीरज़ादा की। अफ़ग़न नफ़रत और हक़ारत से बोल रहा था और मायदा का दिल वहीं बंद हो गया जहाँ इसने अपनी इसका ज़िक्र किया था। आज की रात भी वो इसका गम मना रहा था। इसे सामने बैठी बनी-सवरी दुल्हन मायदा नज़र ही नहीं आ रही थी। मायदा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया था। बेशक इसकी शादी काफ़ी अजीब हालात में हुई थी, लेकिन इस स्टेज पर आकर तो इसके दिल के अरमान भी वही वही हो गए थे जो बाकी आम लड़कियों के होते हैं, और इसकी आमद से पहले वो इन्हीं अरमानों और ख्वाबों की महफ़िल सजाए बैठी थी। लेकिन अब आपकी तबीयत इस वक़्त ठीक नहीं है, आप आराम करें, मैं चेंज करके आती हूँ। मायदा अपना दुपट्टा और लहंगा सँभालती हुई बेड से उतरने लगी। कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को, मेरी तबीयत रोज़ ऐसी ही होती है। अफ़ग़न ने इसकी कलाई पकड़कर इसे रोक लिया। मतलब आप रोज़ ड्रिंक करते हैं? मायदा ने परेशानी से बेसाख्ता कहा था। रोज़ नहीं, जब इसे देखता हूँ। वो इस्तेज़ाइया हँसा था। तो आज कहाँ देख लिया उसे? हैरत थी। मायदा सवाल पे सवाल कर रही थी। तुम्हारे इस रूप में, इस कमरे में, इस बेड पर, हर जगह वही तो नज़र आ रही है। धोखेबाज, झूठी और मक्कार औरत से दिल चाह रहा है इस बेड और कमरे समेत तुम्हें भी आग लगा दूँ। तुम सरता पैर वही हो। अफ़ग़न अफ़रोज़ ने इसे बालों से दबोच लिया था और मायदा अपने लबों से उभरने वाली हल्की सी आवाज़ भी दबा गई थी। अगर आपके सीने में जलने वाली आग इस तरह बुझती है तो बुझाएँ, मारें मुझे, ठंडा करें अपने आप को। मायदा ने इसे खुली छूट दी और अफ़ग़न अफ़रोज़ ने इस छूट का भरपूर फ़ायदा उठाया। इसे अपनी दरिंदगी और वहशत का निशाना बनाकर वो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन चंद लम्हों के लिए पुरसुकून हो गया था। अस्सलाम वालेकुम दादी भी। मायदा फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सीधी इनके कमरे में आई थी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, सुहागन रहो। इतनी जल्दी क्यों उठ गईं? वो इसके सर पर हाथ फेर कर माथे पर बोसा देते हुए बोली थी। नमाज के लिए उठी हूँ और मुझे पता था आपकी नमाज अक्सर कज़ा हो जाती है, इसलिए सोचा आपको भी वज़ू करवा दूँ। मायदा का लहजा पुरसुकून था। बेशक अफ़ग़न अफ़रोज़ ने रात भर इसे अज़ियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी आज ज़िंदगी की नई सुबह का आगाज़ करते हुए वो मुतमईन थी। वो आज़ादी से सांस ले रही थी, वो इज़्ज़त से सर उठाकर चल रही थी। आज इस पर किसी ने हक़ जताया था। वो कोई गैर और नामहरम नहीं था, इसका अपना शौहर था। ईशा, ईशा, मेरा नाश्ता। अफ़ग़न ऑफ़िस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आ चुका था और ईशा को आवाज़ें दे रहा था, मगर हमेशा की तरह वो सुन ही नहीं रही थी। इसीलिए इसे खुद ही किचन में झाँकना पड़ा, लेकिन वहाँ मौजूद हस्ती को देखकर इसके अल्फ़ाज़ जामिद हो गए थे। आप बैठे, मैं नाश्ता लेकर आ रही हूँ। वो पराठे बनाने के बाद स्लाइस सेंक रही थी। टोस्ट बंद करते हुए अफ़ग़न की सिमत पलटी थी। ईशा कहाँ है? अफ़ग़न ने बात बदल दी। दादी भी को लेने गई है, वो भी हमारे साथ ही नाश्ता करेंगी। मायदा ट्रे उठाकर बाहर जाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन दरवाज़े में इस्तादा अफ़ग़न को देखकर ठहरना पड़ा। रास्ता दें प्लीज़, मायदा ने इसे मुखातिब किया तो वो एकदम चौंक कर सामने से हट गया। इतने में ईशा भी दादी की व्हीलचेयर धकेलती हुई डाइनिंग रूम में ही ले आई थी। गुड मॉर्निंग, अफ़ग़न ने आहिस्तगी से कहा। खुश रहो बेटा, दादी भी जवाबन खुशदिली से बोली थी। इतने तैयार श्यार होकर कहाँ जा रहे हो? दादी भी ने इसे नुक्सक से तैयार देखकर फ़ौरन पूछा था। ऑफ़िस। इसका मुख्तसर सवाल का मुख्तसर सा जवाब मौसूल हुआ। ऑफ़िस? क्या आज भी ऑफ़िस ज़रूरी है? वो हैरान हुई। क्यों, आज क्या है? अफ़ग़न अफ़रोज़ ने यूँ हैरानी ज़ाहिर की कि दादी भी चाहते हुए भी कुछ न कह सकी थी। ये चाय ले लें दादी भी। मायदा ने इन लोगों की खामोशी ख़त्म करने के लिए दादी भी को मुखातिब किया था। उन्होंने महज़ मुँह पर इत्तफ़ा किया और थोड़ी देर बाद अफ़ग़न नाश्ता ख़त्म करते ही उठकर चला गया था। दादी भी ने इसे गाड़ी तक पीछे भेजा था, लेकिन वो गाड़ी निकाल ले गया था और मायदा सुस्त कदमों से वापस पलट आई थी। मायदा, जी दादी जी, इधर आओ, मेरी बात सुनो। उन्होंने इसे अपने करीब बुलाया था। रात को अफ़ग़न ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? वो इसे खोज रही थी। कहा है, कहते हैं मुझे अफ़ग़न मत कहा करो, क्योंकि वो भी अफ़ग़न ही कहती थी। मायदा ने इस्तेहज़ाइया अंदाज़ में मुस्कुरा के कहा। वो भी? दादी भी उलझी। जी हाँ, आप भी तो इसे अच्छी तरह जानती हैं, मायदा ने इनके चेहरे की सिम देखते हुए कहा और फिर नज़र झुकाकर अपने हाथों के नाखूनों से खेलने लगी। हाँ, जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, और जितना मैं इसे जानती हूँ ये बेवकूफ़ नहीं जानता। अगर जान लेता तो अपनी ज़िंदगी को इस तरह रोक लगा के ना फिरता। वो मनहूस कमबख़्त खुद तो चली गई, लेकिन अपने पीछे इसके लिए रोक छोड़ गई। दादी बी का खून खोल रहा था। 4 साल हो गए थे, लेकिन अफ़ग़न अफ़रोज़ इन 4 सालों में ज़रा भी आगे नहीं बढ़ा। वहीं पे खड़ा आज तक इसका गम मना रहा है, जहाँ वो इसे छोड़कर गई थी। क्या इस रोग का कोई इलाज नहीं है? दादी भी, मायदा ने धीमे लहजे में पूछा। हाँ हाँ ना, इलाज
ہے نا علاج, اس دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جس کا حل نہ ہو, جس کا علاج نہ ہو. وہ ذرا سا مسکرائیں. کیا تم اس مرض کا علاج, تم ہو, صرف تمہیں حوصلے, صبر اور برداشت سے کام لیتے ہوئے اسی صورت کے زہر سے نکالنا ہے, اسے اپنی طرف مائل کرنا ہے. جیسے وہ ایسی بیوی بن کے رہنا ہے جیسے وہ چاہتا تھا, لیکن وہ نہیں بن سکی, اس لیے اب تمہیں اس کی خواہش پوری کرنی ہے. اور مجھے پتا ہے کہ تم میں اچھی بیویوں والے سارے گن موجود ہیں. دادی بھی اسے تسلی دے رہی تھی, لیکن دادی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی, میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں. ارے پاگل, خوبصورت تو لیلا بھی نہیں تھی, پھر بھی کیس مجنوں ہو کے رہ گیا تھا. تمہیں کس نے کہا تم خوبصورت نہیں ہو؟ جتنی تم پیاری اور پرکشش تم ہو, اتنی تو وہ بھی نہیں لگتی تھی. انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے تھپکتے ہوئے کہا تھا اور اس کی ہمت بندھائی تھی, اور پھر 2 ماہ اس کے صبر اور برداشت میں ہی گزر گئے. افکن افروز نے صفاقی اور سر مہری کی حد کر ڈالی تھی. وہ ہر وہ کام کرتا تھا جس سے معدہ کو اذیت ہوتی, لیکن وہ پھر بھی برداشت کر جاتی تھی, سب سہ جاتی تھی. لیکن آج افکن افروز کا بدلا ہوا رویہ اسے حیران کر رہا تھا. جب میرج ہال کے سامنے اس نے گاڑی کو بریک لگائی تو معدہ نے ٹھٹک کر افکن کی سمت دیکھا, مگر وہ اس کی طرف دیکھے بغیر گاڑی سے اتر گیا تھا. مجبوراً اسے جھٹک کر معدہ کو بھی اترنا پڑا. وہ پچھلی سیٹ سے گفٹ اٹھا کر گاڑی لاک کرتا ہوا ایک طرف آ کھڑا ہوا تھا, اور معدہ اپنے چکراتے دماغ کو سنبھالتی ہوئی بمشکل اس کے قریب آئی تھی. افکن, اس نے آگے بڑھتے افکن کو بے ساختہ پکارا تھا, اور اس کے قدم تھم گئے تھے. مجھے چکر آ رہے ہیں. اس نے ہاتھ میں پکڑے ٹشو سے اپنے پیشانی سے پسینہ پوچھا. اچانک گاڑی سے اترتے ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. اندر چلو, میں ویٹر سے پانی منگواتا ہوں. افکن پارکنگ میں نصب روشنیوں میں اس کے چہرے کی حالت نوٹ کر چکا تھا, اس لیے کچھ سخت کہنے سے پرہیز کیا تھا. لیکن افکن, میرا پورا جسم کانپ رہا ہے. معدہ کی تو جیسے ٹانگوں میں جان ہی نہیں رہی تھی, اور اوپر سے اس نے ہیل پہن رکھی تھی جس کی وجہ سے چلنا بھی دشوار ہو رہا تھا. افکن نے بے اختیار آگے بڑھ کے اسے اپنے بازو میں تھام لیا تھا. معدہ, تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ افکن اب پریشان ہونے لگا. مجھے پانی پلا دیں پلیز. معدہ پوری کی پوری اس کے سہارے پہ کھڑی تھی, لیکن جیسے بے جان ہو چکی تھی. چلو اندر. افکن اسے سہارا دے کر اندر کی طرف بڑھا. حسام انہیں دور سے ہی دیکھ کر اس کے پاس آیا. خیریت افکن؟ خیریت, بھابھی کو کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا. کچھ نہیں, بس راستے میں ہی طبیعت خراب ہو گئی ہے. افکن نے ہاتھ میں پکڑا گفٹ حسام کے حوالے کرتے ہوئے کہا. تم انہیں اندر لے آؤ, میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں. اور پھر افکن اور حسام اسے میرج ہال کے میک اپ روم میں لے آئے. حسام کی امی بھی وہیں آئی تھیں. ڈاکٹر اسے میرج ہال میں ہی دستیاب ہو گیا تھا. یہ شادی شدہ ہیں؟ ڈاکٹر نے حسام کی امی کو دیکھا. جی, یہ اس کے ہسبینڈ ہیں. انہوں نے سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس افکن افروز کی سمت اشارہ کیا. تو پھر مبارک ہو آپ کو, آپ پاپا بننے والے ہیں. ڈاکٹر صاحب معدہ کی نبض اور بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے تھے, اور افکن کو مبارکباد سے نوازا تھا. لیکن افکن تو جیسے گمسم سا ہو گیا تھا, جبکہ حسام نے خوشی سے بھرپور نعرہ لگایا تھا. اوئے مبارکہ یار, مبارکہ, میں چاچا بننے والا ہوں. آج تو ڈبل خوشیاں منائی جائیں گی. حسام افکن کے گلے لگ گیا تھا. اس کی امی معدہ کو مبارک دے رہی تھی. ڈاکٹر صاحب کے دیے ہوئے انجیکشن اور پانی پینے کے بعد معدہ کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی. اس کا بی پی لو ہو گیا تھا, اسی وجہ سے اس کا جسم اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں, لیکن اب طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی. حسام, تم باہر آؤ, مہمان آ رہے ہیں, اور تمہارے ڈیڈ بھی تمہارا ہی پوچھ رہے ہیں. حسام کی امی سے اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گئی, اور حسام اس کا کندھا دبک کے ان کے پیچھے ہی نکل گیا. معدہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں, اور افکن کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں. اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد بھی عجیب سی صورت حال تھی. وہ دونوں ہی خاموش سے ہو گئے تھے. اٹھو, ہم بھی نیچے چلیں. افکن نے گہری سانس کھینچتے ہوئے سر جھٹکا اور قدم پہاڑ کی سمت بڑھا دیے. افکن, معدہ نے ایک بار پھر اسے پکارا. اس کے قدم ٹھہر گئے. آپ خوش نہیں ہیں نا؟ معدہ کے سوال پر افکن نے گردن موڑ کر اسے دیکھا. وہ ابھی تک نظریں جھکائے بیٹھی تھی. مجھے اب بھی خوشی اور ناخوشی کا کوئی احساس نہیں ہوا. جب ہوگا تو میں بتا دوں گا. اس نے 2 ٹوک کہتے ہوئے بات ہی ختم کر ڈالی تھی, اور معدہ ایک بار پھر برداشت کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اسے سیڑھیاں اتر کر نیچے آنے میں افکن کے سہارے کی ضرورت تھی, اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتر رہا تھا. دونوں نے بلیک سوٹ پہن رکھے تھے. حسام کے اشارے پر کئی کیمرے الرٹ ہو گئے تھے, اور کئی فلیش ایک ساتھ چمکے تھے. ان کا یہ خوبصورت اور محبوبانہ سا انداز کیمروں کی آنکھوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا تھا. کیمروں کے فلیش کے دوران ہی عالیہ پیرزادہ نے بھی ایک دم گردن موڑ کے سیڑھیوں کی سمت دیکھا تھا, اور افکن افروز کے ہمراہ سیڑھیاں اترتی لڑکی کو دیکھتی رہ گئی تھی. ان دونوں کی جوڑی بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی. وہ جو کوئی بھی تھی, افکن افروز کے ساتھ خوب جچ رہی تھی. بہت سے لوگوں نے بے ساختہ سراہا تھا انہیں. ارے عالیہ, افکن افروز کی وائف کو دیکھا تم نے؟ یار کتنی چارمنگ ہے. وہ دونوں کی جوڑی کمال کی ہے یار. عالیہ کے ساتھ کھڑی شہرینہ نے برملا تعریف کی تھی, اور ایک پل کے لیے تو عالیہ کے دل میں بھی حسد کی لہر دوڑ گئی تھی.
मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है क्या? आलिया ने इतरा के कहा। तुम मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है या नहीं, लेकिन इस वक्त महफिल की जान लग रही है। देखो, कई लोगों की नज़रें इस पर ठहरी हुई हैं। शहरीना ने कोई भी लगी लपटी रखे बगैर मायदा को सराहा था। इसने शादी कब की? आलिया के बगैर नहीं। आलिया कहे बगैर नहीं रह सकी थी और पास से गुजरते हसाब ने इसकी बात सुन ली थी। वो इसीलिए ठहर गया था। अरे मिसेस पीरज़ादा, आपको अफगन की शादी का नहीं पता? इसकी शादी को तो 3 माह होने को आए हैं, और तो और वो अब पापा बनने वाला है। बहुत लकी साबित हुई है मायदा भाभी। अफगन की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई हैं। बहुत खुश हैं दोनों। हसाम ने लगे हाथों सब कुछ बता दिया ताकि इसे जला सके कि इसके बगैर भी अफगन अफरोज़ खुशबाज ज़िंदगी गुजार रहा है। कल तो मिस्टर अफगन की कोई खुशी नज़र नहीं आ रही थी। आलिया ने तीखे अंदाज से कहा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कल दरअसल मायदा भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो परेशान था और इसीलिए जल्दी चला गया था। वो भी इसी वजह से इससे कल शादी के फंक्शन में नहीं आ सकी थी। हसाम इत्मीनान और सुकून से झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। ओह, तो ये बात थी। आलिया ने होठ सुखेरते कहा। जी, तो आप क्या समझी थी? हसाम इसे जिद कर रहा था। इसका दिल चाह रहा था आलिया को उठाकर कहीं जंगल में फेंक आए। इसने इसके दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। कुछ नहीं, इसने नखवत से सर झटक दिया था। ओके, एक्सक्यूज़ मी। हसाम वहाँ से हट गया और फिर इसने अपनी और आलिया की बातों की रिकॉर्डिंग जो इसने अपने मोबाइल फ़ोन से की थी, वो जाकर अफगन अफरोज़ को सुना दी। अफगन के दिल को न जाने क्यों सुकून पहुँचा था और चेहरे पर खुशी का एहसास भर गया था। आलिया को इसकी बीवी से हसद महसूस हुआ था और यही तो वो करना चाहता था। अब बोलो। हसाम इसे फ़तामंदी से देख रहा था। ग्रेट यार, तुम बहुत चालाक और समझदार हो। अफगन ने इसे धमकी दी। इसीलिए तो तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ कि मायदा भाभी के साथ रहो, इनका ख्याल रखो, इसमें तुम्हारी इज़्ज़त और भलाई है। हसाम इसे मशवरा देकर खुद स्टेज की सिमत आ गया, जहाँ इसकी अपनी दुल्हन बराजमान थी। हाय, आलिया और शरीना मायदा के करीब आकर हाथ बढ़ाते हुए बोली। अस्सलाम वालेकुम। मायदा ने ठिठक कर इन दोनों को देखा। दोनों ने साड़ियाँ पहन रखी थी। कमर और बाजू बरहना थे। रेशमी सिल्की साड़ियों के ढलकते हुए पल्लू इन्हें प्लेट में सजी हुई दावत का रूप दे रहे थे। वो इस महफिल में मौजूद तमाम मर्दों के लिए राहत बनी हुई थी। आप कौन? मायदा ने हैरानी के बाइस पूछ ही लिया था, क्योंकि इस फंक्शन में मौजूद तमाम लोग इसके लिए अजनबी थे, सिवाय हसाम की फैमिली के। लेकिन अफगन ने कभी मेरा जिक्र नहीं किया। क्या आपसे? आलिया के अंदाज पर मायदा बुरी तरह चौंक गई थी। वो लम्हे के 1000वें हिस्सों में पहचान गई कि वो आलिया है, लेकिन मायदा बेवकूफ़ नहीं थी जो इस खबीस औरत को खुशी का मौका फराहम करती या फिर इसे शह देती। इसीलिए इसने लाइल्मी का इजहार किया था। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। आप अपना तारुफ खुद करवा दें। मैं अफगन अफरोज़ की एक्स वाइफ हूँ, आलिया पीरज़ादा। इसने जैसे फ़खरिया अंदाज में तारुफ करवाया था। ओह अच्छा, तो आप हैं आलिया? मायदा ने ज़रा सा मुस्कुराकर इससे हाथ मिलाया था। जी, यही हैं आलिया। अफगन अफरोज़ जैसे हीरे की कीमत ना पहचानने वाली। शहरीना तंज़िया बोली और आलिया ने इसे घूर के देखा। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ क्या हो रहा है? अफगन अफरोज़ आलिया को मायदा की टेबल के करीब खड़े देखकर फ़ौरन पास चला आया। आपकी वाइफ के साथ दुआ सलाम और तारुफ हो रहा है। शहरीना ने जवाब दिया। इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, काफ़ी है। अफगन अफरोज़ इन 4 सालों में पहली मर्तबा आलिया के सामने रूबरू आ खड़ा हुआ था। वरना वो जहाँ भी इसे देखता था महफिल छोड़ जाता था। ये तो आप ठीक ही कह रहे हैं। शरीना ने सर हिलाया था। आओ मायदा, हसाम स्टेज पर बुला रहा है तस्वीर बनवाने के लिए। अफगर ने इसके गिर्द बाजू फैलाते हुए कहा और इन दोनों को नज़रअंदाज करते हुए स्टेज की सिमत बढ़ गया। आलिया के साथ साथ मायदा भी देखती रह गई थी। इसने अफगन के ऐसे रूप कहाँ देखे थे भला? इसने तो आज तक मायदा पर सितम ही ढाए थे। ऐसी कर्म नवाजियों और अनायतों से तो वो अनजान ही थी, इसलिए अपने साथ चलते अफगन को हैरानी और हसरत से देख रही थी। वो इसे एहतियात से सोफे पर बिठाकर खुद भी इसके साथ ही बैठ गया था। आलिया दूर खड़ी देख रही थी। आज तो आप बहुत खुश होंगे। रात गई जब मायदा लिबास चेंज करके बिस्तर पर आई तो अफगन तकिए से टेक लगाए बैठा अभी तक जाग रहा था, और मायदा जो दिल में था बोले बगैर ना रह सकी। किस लिहाज से कह रही हो? अफगन ने इसकी तरफ करवट बदलते हुए कहा और नजरें इसके चेहरे पर जमा दी। मायदा भी इसकी सिम देख रही थी, जिस वजह से आप मुझे फंक्शन में लेकर गए थे। मायदा ने इसकी आंखों में देखते हुए बरबला कहा और अफगन इसकी बात सुनकर बेसख्ता मुस्कुरा दिया था। इसका मतलब है बहुत ज़हीन और समझदार हो तुम। अफ़ग़न, आपने किसी को जलाकर खुश होना था तो बहुत पहले हो जाते। मायदा की बात पर अफ़ग़न ने लब भींच लिए थे। क्या बात है, आप चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, सो जाओ, वो कहकर करवट बदल गया और मायदा इसकी चौड़ी पुश्त को घूरने लगी, लेकिन दिल ही दिल में कदरे खुश हो रही थी कि आज इसने ड्रिंक नहीं की थी। हालांकि वो जब भी आलिया को कहीं देखता था इस रोज़ ड्रिंक करके अपना बुरा हाल कर लेता था, लेकिन आज अफ़ग़न खुश हुआ था तो मायदा भी खुश हो रही थी। इसे उम्मीद हो चली थी कि वो बदल जाएगा, वो बेहतरी की तरफ लौट आएगा, और यही एहसास इसकी सुकून भरी नींद का बायस बन गया था।
वो अभी ऑफिस में आकर बैठा ही था कि अचानक हस्साम की कॉल आई। अखबार पढ़ा तो तुमने? नहीं, अभी तो आया हूँ। ओके, तुम अखबार पढ़ो, मैं तुम्हें फिर फ़ोन करता हूँ। हस्साम ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया था और अफगन उलझ कर रह गया। फिर अपनी सेक्रेटरी को अखबार भेजने का कहा। चंद सेकंड बाद अखबार इसके सामने था। आलिया की तलाक का पढ़ के वो हक्का बक्का रह गया था। जमाल पीरज़ादा ने इसे तलाक दे दी थी क्योंकि जमाल पीरज़ादा के दिल पर कोई और लड़की चढ़ गई थी। आलिया ने एहतजाज किया और जमाल पीरज़ादा ने इसे तलाक देकर फारिग कर दिया। अफगन अखबार टेबल पर रख के चुपचाप बैठ गया था। इसके दिलो दिमाग में जक्कड़ से चल रहे थे। इसे हैरत हो रही थी कि एक गरीब से घर में रहने वाली आलिया दौलत के लालच में कहाँ जा पहुंची थी। पहले इसने अफगन अफरोज से मोहब्बत की पींगें लड़ाई, इसे शादी से पहले तरक्की की तरफ राग़िब किया और वो तो था ही इसका दीवाना। इसकी खातिर दौलत कमाने के लिए अपनी दादी भी को छोड़ के अमेरिका चला गया। वापस आया तो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका था और आलिया से शादी करने के बाद तो जैसे खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझने लगा था। लेकिन फिर आलिया को इससे भी ज़्यादा कामयाब आदमी मिल गया था। ब्यूरोक्रेट जमाल पीरज़ादा इसकी खूबसूरती पर फ़िदा था और आलिया इसके की बेतहाशा दौलत पर। इसलिए आलिया ने इसे छोड़ के जमाल पीरज़ादा को तरजीह दी थी। अफ़गर ने इस औरत की बेवफ़ाई और चालबाज़ी को अपनी ज़ात पर तारी कर लिया था। इसने 4 सालों में इतना कमाया था कि अब वो जमाल पीरज़ादा से कहीं आगे था। आलिया भी ये बात जानती थी, लेकिन अब वापस पलटने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो अब इससे नफ़रत करता था, बल्कि इससे ही नहीं तमाम औरतों से नफ़रत करता था और इसी नफ़रत ने इसे आज तक मायदा के करीब नहीं होने दिया था। एक औरत का बोया हुआ बीज दूसरी औरत काट रही थी। वो एकदम कुर्सी धकेल कर उठा और अपना मोबाइल, चाबियाँ वगैरह उठाकर तेज़ी से बाहर निकल गया। इसका रुख अपने घर की तरफ था। वो बहुत रश ड्राइविंग करता हुआ घर पहुँचा था। दादी भी की तबीयत ठीक नहीं थी। मायदा ने इन्हें नाश्ता करवा कर कुछ देर सोने का कहकर खुद ईशा के साथ मिलकर सफाई करने लगी थी। हालाँकि ऐसे काम करते हुए इसे काफ़ी चक्कर और उबकाइयाँ आती थीं, लेकिन फिर भी वो काम में लगी रहती। इस वक्त भी इसे बहुत ज़ोर की कै आई थी और वो अपने बेडरूम की तरफ भागी थी। ईशा इसे देखकर मुस्कुरा दी। इसे भी पता था कि घर में एक रौनक आने वाली है। दादी भी के साथ-साथ ईशा भी बहुत खुश थी, लेकिन वो खुश नहीं था, जिसकी वजह से ये रौनक आ रही थी। मायदा कहाँ है? इसने घर में दाखिल होते ही इस्तफसार किया था। वो तो ऊपर अपने कमरे में है साहब जी। ईशा ने चौंक कर जवाब दिया था। वो सर हिला के लंबे-लंबे डांग भरता सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर बेडरूम में चला गया था। बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से इसकी उबकाइयाँ करने की आवाज़ आ रही थी। वो कमरे में टहलते हुए इसका इंतज़ार करने लगा। इसके अंदाज़ में इज़्तिराब था। वो दाएँ-बाएँ टहलते हुए काफ़ी मुज़तरब और मुश्तइल लग रहा था। मायदा थकी-थकी निढाल सी बेडरूम से बाहर निकली थी तो अफ़गन को देखकर ठिठक गई थी। "आप कब आए?" वो तौलिए से चेहरा पोंछकर वहीं बेड पर बैठ गई। नकाहत की वजह से इसका पूरा जिस्म लरज़ रहा था। वो बगैर दुपट्टे के बैठी हुई थी। वो और ऐसी नढाल हो रही थी कि दुपट्टे का भी होश नहीं था। "मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ।" अफ़गन का लबो लहजा पहले की तरह सर्द और अजनबी हो रहा था। मुझसे मायदा ने चौंक कर देखा था। "देखो, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना तुम्हारी इस घर में कोई गुंजाइश नहीं होगी।" अफ़गन ने बात शुरू करने से पहले ही सूरत-ए-हाल अ, तख़मीन कर डाली थी। "ये क्या कह रहे हैं आप?" हाँ, मायदा इसकी बात पर की परेशान हुई थी। "मेरे साथ अस्पताल चलो," वो इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोला था। "क्यों? मैं बच्चा नहीं चाहता।" अफ़गन की बात पर जैसे घर की छत मायदा के सर पर आन गिरी। वो साक़त और सामत की खुद ब खुद रह गई थी। "अफ़गन, आप ऐसा क्यों कर रही हैं?" वो कहते हुए रो पड़ी थी। "क्योंकि तुम सब औरतें एक जैसी होती हो। इसने भी मुझसे दौलत के लिए शादी की, तुमने भी मेरी दौलत और मेरा घर देखकर शादी की। इसे भी कोई और मिल गया, तुम्हें भी कोई और मिल जाएगा।" "शट अप अफ़गन, जस्ट शट अप। आपसे किसने कहा कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं? अगर सारी औरतें एक जैसी होती हैं तो सारे मर्द भी एक जैसे होते हैं। ज़लील, कमीने, घटिया, हवसज़दा और नफ़्स परस्त। बकवास बंद करो अपनी।" अफ़गन ने इसे एक ज़न्नाटेदार थप्पड़ दे मारा था। "ये बकवास आपको सुननी पड़ेगी। मैंने आपसे शादी आपकी दौलत और घर देखकर नहीं की थी, बल्कि एक मज़बूत छत देखकर की थी। ऐसी छत जो मुझे छुपा सके, जो मुझे पनाह दे सके, क्योंकि मैं एक मर्द की सताई हुई थी, और मर्द भी वो जो मेरा सौतेला बाप होने का एज़ाज़ रखता था। मुझे क्या पता था कि मैं एक मर्द से छुपकर दूसरे के पास पनाह ले रही हूँ तो वो भी कुछ कम अज़ियत नहीं देगा मुझे। वो भी मुझे औरत होने की सज़ा देगा, ताने देगा, घर से निकालेगा, मेरे सर से छत छीन लेगा। मुझे पता होता तो मैं किसी मर्द के पास पनाह लेने के बजाय खुदकुशी कर लेती।" मायदा कहते हुए ज़ारों की तार रो रही थी और अफ़ग़ान शद्दत सर इसे देख रहा था। "सौतेला बाप है?" इसके ज़हन में बस एक ही नाम गर्दिश कर रहा था। "हाँ, मेरा सौतेला बाप। आप जैसा एक और मर्द, मुझ पर बुरी नज़र रखने वाला, घर में ही मेरे लिए ताक लगाए बैठा रहता था। इससे बचने के लिए मैंने नौकरी की। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मेरे लिए काम ज़रूरी है, तनख्वाह नहीं। आप मुझे बेशक तनख्वाह ना दें, मैं फिर भी काम कर लूँगी, क्योंकि मैं इस ख़बीस आदमी की नज़रों से ओझल रहना चाहती थी।
اس لیے میرا گھر واپس جانے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ میں داستاں لیٹ ہونے کی کوشش کرتی تھی تاکہ میرا اس سے سامنا نہ ہو، اور اسی لیے میں نے سوچا کہ میری شادی ہو جائے۔ میرا خیال تھا کہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک مرد کے کیے کا الزام میں دوسرے مرد کو کیوں دوں؟ دوسرا اچھا بھی تو ہو سکتا ہے، اور اس اچھے کے بھروسے پر میں نے آپ پر اعتبار کر لیا۔ میں نے تو آج تک آپ سے یہ نہیں کہا کہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایک سے بھاگ کے دوسرے کے پاس پناہ لی ہے تو وہ بھی مجھ پر روز ستم ہی کر رہا ہے۔ میں تو صبر و شکر سے آپ کے سارے ستم سہ رہی ہوں، تو پھر آپ کیوں الزام دیتے ہیں کہ ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ اور رہا میرا اور عالیہ کا فرق، تو یہ فرق آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اسے در در پھرنے کی عادت ہوگی، لیکن مجھے ایک ہی گھر اور ایک ہی چھت تلے رہنے کی لگن ہے۔ آپ کے سوا کسی اور کا مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ اور ہاں، اس بچے کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہ سہی، لیکن میرے لیے یہ بہت اہم ہے۔ ایک یہی تو میرا اپنا ہوگا۔ آپ مجھے گھر سے نکالیں گے تو نکل جاؤں گی، کیونکہ میرا کوئی اور نہیں ہے اس کے سوا۔ نہ میری ماں میری ہے اور نہ آپ میرے ہیں۔ آپ تو صرف عالیہ کے روگی ہیں، صرف یہ میرا ہے۔ اس کی خاطر چھوڑ دوں گی آپ کا گھر بھی اور آپ کو بھی۔ وہ روتی بلکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اور افغان افروز دم بخود سا کھڑا تھا۔ دروازے پہ خاصی زوردار قسم کی دستک ہوئی تھی، اور دادی بھی جان گئی تھی کہ دروازے پر کون ہے۔ اسی لیے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے تسبیح پڑھتی رہیں۔ وہ بھی جانتا تھا کہ اندر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوگا، اس لیے دروازہ دھکیل کر خود ہی اندر آ گیا تھا۔ السلام علیکم دادی بھی۔ وعلیکم السلام، انہوں نے جیسے نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دیا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ ان کے بیٹھ کے قریب رکھی کرسی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، تمہاری اس کمرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے، انہوں نے غصے سے کہا۔ دادی بھی پلیز میری بات سن تو لیں، افغان نے لجاجت سے کہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میں اتنے سالوں سے سنتی ہی آ رہی ہوں۔ دادی بھی آئی ایم ریئلی سوری، پلیز دادی بھی، میں شرمندہ ہوں اپنی سوچ پہ۔ افغان ان کے بیڈ پر ان کے قریب ہی سر جھکائے بیٹھ گیا۔ تم نے کبھی اچھا سوچا ہوتا تو تمہیں یوں شرمندہ نہ ہونا پڑتا، اور تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ مائدہ بھی عالیہ جیسی ہی ہے؟ تم شاید یہ بھول گئے تھے کہ وہ تمہاری پسند تھی اور مائدہ میری پسند ہے۔ وہ عالیہ جیسی ہوتی تو عزت بچانے کے لیے یوں پناہ نہ ڈھونڈ رہی ہوتی۔ دادی بی کو افغان پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ خوب دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ جی، میں یہ فرق اچھی طرح جان گیا ہوں، اسی لیے معاہدہ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے بالآخر اس حقیقت کو تسلیم کر ہی لیا۔ تم اب جو بھی کہہ لو، وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، دادی بی نے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ دادی بی پلیز، آپ کو تو کم سے کم میرا کچھ خیال کرنا چاہیے۔ ایک مدت کے بعد مجھے اپنی بیوی اچھی لگ رہی ہے، تو آپ کیوں اسے مجھ سے دور رکھنا چاہتی ہیں؟ وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ کیونکہ مجھے تم پر اعتبار نہیں رہا۔ تم اپنے بچے کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے ہو۔ دادی بی کی بے اعتباری پر افغان ایک دم قہقہ لگا کر ہنسا تھا، اور ساتھ ہی دادی بی کے گلے میں دونوں بازو ڈالتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ کون کافر اپنے بچے کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ وہ تو محض غصہ تھا۔ آپ کو نہیں پتا مجھے بچے کتنے پسند ہیں، وہ خوش ہو کے کہہ رہا تھا، اور دادی کی اپنے پوتے کے چہرے پر سچی خوشی کے رنگ دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ یہ لیٹی ہوئی ہے مائدہ، لے جاؤ اسے، اجازت ہے میری۔ دادی بی نے اپنے بیڈ کی دوسری سائڈ پر اشارہ کیا تھا، جہاں مائدہ کافی دیر سے کمبل میں دبکی ہوئی نیند کا بہانہ کیے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ یہاں افغان کو حیرت ہوئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تھا، لیکن مائدہ یوں ہی پڑی رہی، بے حس و حرکت۔ اٹھائیں نہ اسے، اس نے دادی بی کو کہا۔ تم خود اٹھا لو، دادی بی نے اسے کہا۔ واقعی میں سچ مچ اٹھا کر لے جاؤں گا، پھر لے جاؤ، وہ اجازت دے رہی تھی۔ دادی بی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مائدہ یک دم کمبل پر دھکیل کر اٹھ بیٹھی تھی، اور افغان کے ساتھ ساتھ دادی بی بھی کھل کر ہنس دی۔ لو اٹھ گئی ہے، انہوں نے اشارہ کیا۔ تھینک یو، افغان ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اٹھا اور مائدہ کی طرف آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مائدہ دادی بی کے سامنے اس کی ایسی حرکت پر جھیپ گئی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ چھوڑتا ہوں، پہلے تم اٹھو تو صحیح، افغان دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اوکے دادی بی، گڈ نائٹ، صبح ملاقات ہوگی۔ وہ انہیں گڈ نائٹ کہہ کر مائدہ کو ننگے پاؤں کھینچتا ہوا اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ دادی بی کیا سوچیں گے؟ مائدہ خفگی سے بولی تھی، اور افغان نے بیڈ روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے اسے مسکرا کر معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا۔ پہلے پاگل تھا، اب تو میں ہوش میں آیا ہوں، میرے ہوش و حواس سب تمہارے نام۔ آپ کے ہوش و حواس کا کیا اعتبار، جانے کب آپ ڈرنک کر کے گنوا دیں۔ تمہاری قسم، اب نہیں کروں گا۔ اس نے کان پکڑے۔ افغان کے جواب پر مائدہ کا دل یک دم پرسکون ہو گیا تھا۔ اور ہاں، تمہارے لیے خوشخبری ہے، آج کے اخبار میں صرف عالیہ کی طلاق کا ہی نہیں بلکہ کچھ اور بھی لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ مائدہ جلدی سے بولی۔ شیخ زمان کو جیل ہو گئی ہے، اس نے اطمینان سے بتایا تھا۔ شیخ زمان کو جیل؟ مائدہ بری طرح چونکی۔ ہاں، اس نے محلے کی کسی لڑکی کو بہانے سے گھر میں بلا کر اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ تمہاری امی آئیں اور شور مچا دیا، جن کی بیٹی تھی وہ پولیس لے آئے اور شیخ زمان کو جیل بھیج دیا۔ او خدایا، پھر امی تو کافی غیر محفوظ ہوں گی۔ اگر وہ جیل میں آ گیا تو اور اگر وہ جیل سے آ گیا تو امی کو نقصان پہنچائے گا۔ مائدہ کو اب حلیمہ بی بی کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ نہیں
पहुँचेगा, क्योंकि मैं कल ही आंटी को अपने घर ले आऊँगा और इस कमीने पर ऐसा किस करूँगा कि कभी बाहर की हवा भी ना लेगा। अफ़सर ने जैसे अपना फैसला सुनाया और मायदा हमारे खुशी और तशक्कुर के बेसाख्ता अफ़ग़न के सीने से लग गई। वो रो रही थी और अफ़ग़न ने इसे अपनी पनाहों में ले लिया था। इसकी खुशी भरे आँसू अफ़ग़न के सीने में जज़्ब हो रहे थे। इसने मायदा के माथे पर इस्तेहकाक भरा बोसा दिया था। वो अपना हसार इसके गिर्द और भी मज़बूत कर दिया था, जिस पर वो अल्लाह का शुक्र बजा लाई थी। ख़त्म शुद।